Today we will talk about introduction to this topic, history of India, which is there in General Studies paper 1. Okay. You would have a separate lecture for world history, right? That would be taught by Jawad Kaji sir. So we would be dealing with history of India, which covers ancient, medieval, modern, art and culture, right? And modern history of India, right? With all its aspects, and post-independence history of India. Now, before we talk about anything else, there are a few basic questions that we need to answer. As we talked about yesterday, ultimately we have to get down to what? Syllabus, right? And this is one subject that people know something about, which is generally false history. Are you getting this? And my struggle initially is to bring the students on path. So I need your cooperation. I'm giving a declaration clearly that होता है ना मूवी के पहले declaration, मूवी के पहले होता है, यहाँ पे ये declaration दे रहा हूँ कि movies are not history. So movies, web series, WhatsApp forwards, social media, this is not at all a source of history. Okay. Then the question comes, history क्या है? I would answer that today. Pay attention here, because unless we know what is history, right, we cannot talk about syllabus. Doesn't matter which subject you try to learn. In the beginning, you are supposed to understand what that subject is all about, right? And once you understand that and the basic concepts, you are in a position to understand what is to be done according to UPSC syllabus. समझ में आ रहा है? There is no point in jumping. I would talk about syllabus, no doubt about that. I would talk about a reference book list, right? I would talk about how to prepare for this topic in UPSC examination. Those things are there, no doubt about that. But before that, we need to understand what is history, number one. Number two, what are we supposed to study in history? Okay, so these two questions must be answered first. Rather, I would put that question to you. What is history? Any kind of wild guess, I don't mind. Question kya hai? What is history? So all of you almost talked about what? Past. एक बात बताओ, अगर past history, ठीक है, so there is a term called prehistory. Is there something called prehistory? Then is there something called pre-past? Another term to confuse you more. Proto-history. ये क्या है फिर? So when we say something, we should not actually, create conditions for more questions when you answer. और मैंने कल force का example देके बताया था आपको. You should not allow the person in front of you to come up with more questions, right? आप क्या करते हो कि दूसरे concept के सहारे एक concept का आंसर देने की कोशिश करते हो, generally, right? Yes, it is indeed about past. There's no doubt about that. But what is it exactly? History which belongs to, पता नहीं क्या लिखा है, 17 AD क्या होता है? I did not understand that. Please clarify that so I can read it. So is it about past? ठीक है, it is about past. लेकिन कौन सा past? और कहाँ तक पीछे जाना है? Big Bang तक? That would amount to some billion number of years, right? सर फट जाएगा इतना पढ़ोगे तो, है ना? ठीक है. Beginning of human species, maybe, but that you do in geography, anthropology, and whatnot. ठीक है. So what is history? He answered actually. History is what? Recorded past. History क्या है? Recorded past. तो एक दूसरा सवाल बनता है कि इंडिया का हिस्ट्री कहाँ शुरू होता है फिर? अभी क्या बोला है हिस्ट्री मतलब क्या है? रिकॉर्डेड पास्ट. चलो मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ पीपीटी में. हाँ, so we would learn this today. What is history? What do we need to study in history? What is Indian history? ये भी पता होना चाहिए कि exactly क्या है. I will come to that answer. Then syllabus, then sample questions,
how to study, and then sources. Okay. So these are the questions. एक कुछ definition भी है history के. These are kind of academic definitions. History of memories of societies. ऐसा कुछ इसने बोला था. World history biography of great men, right? And history is dialogue between present and the past. ये सारे definitions देखने में सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं. But again, these definitions do not solve a problem. वो problem क्या है मैं वो भी बताता हूँ. पता चल गया आपको कि past में कितना पीछे जाना. These definitions do not really solve that problem. So memories of the societies. Society की memories तो बहुत होते हैं. Right? There are many memories of different societies. Do we study all of them? The answer is no. Right? World history biography of great men. There is a lot apart from biographies of great men in history. Are you getting this? It is not just about great men. It is also about ordinary men. And it is also about women, by the way. Right? History is a dialogue between present and the past. Kind of yes, but again, this does not clarify exactly what. तो कुछ limitations है इसके, ठीक है? So आगे बढ़ते हैं, and these are the questions that I talked about in the beginning, and these are the answers. Pretty simple answers. History is what? Recorded past, and when you say recorded past, आज तो सब कुछ record करके रखा है ना? Big Bang से लेकर सब कुछ लिख के रखा है, तो कौन सा record? Which record are we talking about? Record from the time period in question. Means what? पीछे जा करके एक कोई टाइम पीरियड है, वहां से रिकॉर्ड मिले हैं, आपका लिखा हुआ नहीं आज का. So records from time period in the past, right? That is in question right now. Whether should we include it in the historical period or not, right? So we are talking about records from that period. Okay. So on this basis, now you answer that question. ये कहाँ शुरू होता है? You keep that answer in your mind. Record could be written or oral. ठीक है. Either they may have some kind of written record. Oral record कैसे होता है? It comes from one generation to other generation orally, not written down, not codified, but orally transmitted from one generation to other generation. ठीक है. That is called oral record. तो इन दोनों में से कोई एक रिकॉर्ड होना चाहिए, right? So that is where what is called historical period. उसके पीछे का जो भी है, anything that goes beyond that point from where you start getting records, that period is called prehistory. उसको क्या बोला गया? Prehistory. And there could be a period where from where you're getting records, but somehow you're not able to read it. Somehow you're not able to decipher it, decode it. मतलब records है, but no meaning you are able to derive from it. That is called proto-history. Proto का मतलब क्या है? What is the meaning of the term proto? Prototype होता है ना, prototype, like something, right? है ना? So like history, it's not history but like history, because records है, we are not able to derive any kind of meaning out of it. So this is, some understanding of what is history, right? We'll go further in detail, but before that, जो question मैंने पूछा था, can you answer that now? Records कहाँ से मिले, किस time period से? 1500 BC क्यों बोला तूने? CS है ना तू? हाँ, है ना? ठीक है. और डरने की बात नहीं है. ठीक है. Basic thing is, you should read little bit before coming here, but never too late, because batch शुरू हो रहा है. हाँ, 23rd. अब just time है. You just read NCERTs as early as possible. ठीक है. Rest, leave it to me. मैं जानता हूँ कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, कुछ थोड़ा सा प्रिपेयर करके, कुछ बिल्कुल नहीं होता है, and some are, they even don't know what is UPSC. They're expecting everything, right? और मुझे यहाँ पे coalition government शुरू करना पड़ता है. Common minimum program, everybody should get something here, isn't it? And बाद में सब जब एक लेवल पे आएंगे तो फिर वो मोमेंटम मिल जाएगा क्लास को. डोंट वरी. ओके. सो रिकॉर्ड्स कहाँ से मिले? आई गॉट वन आंसर हियर. हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम हरप्पन सिविलाइजेशन. ओके. सी, and he says 1500 BCE. What is that? Beginning of Vedic age, right? ठीक है.
I would come to the answer, but at least you are into that zone. ठीक है, कि जहाँ पे आप you are able to understand कहाँ locate करना है उसके records कहाँ से मिले. Okay. Are we clear on relation between the term history and past now? ठीक है. You might be satisfied, I'm not. ठीक है. अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है. रिकॉर्ड जहां से मिले हैं वो टाइम पीरियड अगर पीछे चला जाए, हम चले जाए, तो इस दौरान बहुत कुछ हुआ है, राइट? तो आर वी गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट? द आंसर इज नो. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट, what is the exact relation between history and past, you would understand that from these two sentences. सबसे पहली बात ये है, history is bodies of knowledge about the past, right, produced by historians and not by entire present generation. Getting this? Every person may say something, right? ये हुआ है, ऐसा बोलते भी हैं लोग, तो सब कुछ डालोगे उसमें, वो पॉसिबल नहीं है, right? And that is not even appropriate, right? There are professionals who are called historians. They put in a lot of effort, they gather data, they gather evidences, and based on that they build history. Are you getting this? So history is bodies of knowledge about the past produced by historians. So club these two things together, you get exactly what is the meaning of the term history. समझ में आ रहा है? That is where it becomes clear. दूसरी बात, everything which has actually happened, whether known to or written about by historians or not, ये past है. Past में सब कुछ आता है, right? Historians, चलो हमारी शादी हो गई past में, तो historians के ऊपर क्यों लिखेगा, right? या फिर किसी का डेथ हो गया, उसके ऊपर क्यों लिखेगा? There has to be something significant, right? Isn't it? है ना? इसका that doesn't mean only, you know, significant personalities are covered. समझ में आ रहा है? For example, if there was a time period in the past where, you know, people suffered from economic backwardness, there was hunger, right? There was some kind of famine. ये कोई मतलब ऐसा नहीं कोई great person है उसके बारे में बात लिखी जाती, नहीं. It's a general condition in society, isn't it? So different things are talked about which are significant, not just people, right? It is also about different conditions, socio-economic conditions, cultural conditions, religious developments. So all these things are taken care of, you know, by historians. But there are many things which happen in the past which are not taken into consideration. So do not always say like this, blanket answer बोलते हैं इसको कि हाँ history is past. No, there has to be some specific meaning to it, right? And it is this meaning: recorded past plus that past or that body of knowledge about the past produced by historians. So that makes us very clear what is history. Okay. Now, this is another question. What do we study in history? Many people have misconceptions about history. They think that history is about kings, right? Their wars, their victories, their marriages, romances, right? But, you know, it is not always significant. Please try to understand this. So exactly क्या पढ़ना है history में? What do we need to study in history? उसका ये आंसर है. अब ये जो आप देखते हो ना कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड कल्चरल एस्पेक्ट, हिस्ट्री एंड फॉर दैट मैटर एनी सब्जेक्ट इज एक्चुअली स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी सेल्फिश, वेरी सेल्फिश. हम वो पढ़ते ही नहीं जो हमसे रिलेटेड नहीं है. प्रूफ दूं? प्रूफ ये है, हमने एनवायरनमेंट कब पढ़ना शुरू किया? ये सब्जेक्ट पहले नहीं था, नया आया है. तो एनवायरनमेंट नया है क्या? नहीं. तो व्हेन एंड व्हाई डिड वी स्टार्ट स्टडीइंग एनवायरनमेंट? बताओ, कब पढ़ना शुरू किया हमने? अरे ईयर नहीं पूछ रहा हूं, ऐसा क्या था जिसकी वजह से पढ़ना शुरू किया हमने? हाँ, when environmental issues came in, right? Environmental issues कब से आ रहे हैं? मतलब डैमेज टू द एनवायरनमेंट, राइट? ये कब से हो रहा है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं, उसके बहुत पहले, जब से हम आए हैं.
Only humans are, the animals who exploit resources beyond what is needed. ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात तो लार्ज स्केल पे, उसके पहले से चल रहा था. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ? टुवर्ड द एंड ऑफ 18th सेंचुरी. मतलब उसको भी कम से कम 2-2.5 शतक हो चुके हैं, 2 centuries एटलीस्ट. मतलब एनवायरमेंट को डैमेज करके हमने उसको पढ़ना नहीं शुरू किया, लेकिन जब डैमेज्ड एनवायरमेंट हमको डैमेज करने लगा, दैट इज वेयर वी स्टार्टेड स्टडीइंग एनवायरमेंट. वी आर एब्सोल्युटली सेल्फ सेंट्रिक. सारे सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं ना हम, एट द सेंटर ऑफ इट इज ह्यूमन बीइंग. आप सोच रहे होगे मैथमेटिक्स में कहां सेंटर है ह्यूमन बीइंग? अरे मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हो? हर चीज में मैथमेटिक्स है. कंप्यूटर प्रोग्राम्स, राइट, what we are using here, everything that you do, there is mathematics involved. समझ में आ रहा है? तो ह्यूमन लाइफ का डायरेक्ट अकाउंट यहाँ पे होता है. कहाँ पे? हिस्ट्री में. तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन लाइफ हैज गॉट सर्टेन एस्पेक्ट्स, राइट. ह्यूमन लाइफ हैज गॉट पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी, बिकॉज वी लिव इन ए स्टेट. वी लिव इन ए स्टेट, राइट. स्टेट मतलब गवर्नमेंट. हाँ, ठीक है. देयर इज सोशल एस्पेक्ट, वो है ना, मैन इज, डायलॉग, मैन इज सोशल एनिमल, है ना. बड़ा सेंटेंस, कुछ लोगों को याद होती है कि हाँ मैन इज सोशल एनिमल, बोल दो, है ना. मैं उसकी बात करता हूं कि मैन इज सोशल एनिमल और मैन इज पॉलिटिकल एनिमल. क्योंकि एरिस्टोटल ने क्या बोला था? मैन इज पॉलिटिकल एनिमल. एंड प्लीज ऑल द गर्ल्स पार्डन मी, बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज इन ओल्ड लिटरेचर. मैन 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 मैन, है ना. वो जेंडर बैलेंस नहीं होता है, इंडिविजुअल बोलना चाहिए, पर्सन बोलना चाहिए. बट वो एरिस्टोटल का सेंटेंस ऐसा ही है, मैन इज पॉलिटिकल एनिमल. तो मैन पॉलिटिकली के सोशल है. बाय नेचर मैन इज पॉलिटिकल एनिमल और सोशल एनिमल. सोशल. आप पॉलिटिकल नहीं इसलिए किस लिए बोलते हो पता है क्या? यू थिंक दैट यू आर नॉट पॉलिटिकल. बट अगर मैं ये बोल दूं यू कैन नॉट बी सोशल विदाउट बीइंग पॉलिटिकल, ठीक है, ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बीइंग पॉलिटिकल. पॉलिटिकल मींस व्हाट? क्या है पॉलिटिकल मींस व्हाट? देखो, मतलब हमको पता नहीं होता है, एंड देन वी आर वेरी क्लियर कि आई एम नॉट पॉलिटिकल. डू यू नो व्हाट इज पॉलिटिकल? लोग बोलते हैं मुझे पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगता. बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है. एवरीवन इज पॉलिटिकल. आई टेल यू वन थिंग, ह्यूमन रिलेशंस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. ह्यूमन रिलेशंस आर नॉट पॉसिबल विदाउट बीइंग पॉलिटिकल. रीजन बीइंग, पॉलिटिक्स जिसको बोलते हो आप, जो आप फॉर्मल पॉलिटिक्स देखते हो ना, फॉर्मल पॉलिटिक्स, उसको देख करके आपका एक ओपिनियन बनता है कि वो गंदा है. बिकॉज व्हाट यू सी इज करप्शन एंड देन डिसीट, ट्रिकरी, इजंट इट, फॉल्सहुड, ये सब देखते हो ना, तो आपका एक ओपिनियन बन जाता है, ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में. बट आप ये नहीं सोचते हो कि पॉलिटिक्स गंदा है कि वो पॉलिटिशियंस गंदे हैं. आपने वो सब्जेक्ट तो हैंडल किया होगा, साइंस, बून और बेन. और ये कहीं ना पता नहीं कि स्कूलिंग में ऐसे ऐसे लिखा होगा या फिर डिबेट कंपटीशन में यू माइट हैव रोट अबाउट दिस, साइंस, बून और बेन. आपने क्या लिखा था? शाप की वरदान रे, विज्ञान शाप की वरदान. काय लो तो जो भी लिखा था, शाप है या फिर वरदान है ना, वो दोनों नहीं है. पता है क्या आपको? साइंस इज नाइदर बून नॉर बेन. साइंस इज नथिंग. साइंस इज वैल्यू न्यूट्रल, ठीक है. उसको वैल्यू कौन देता है? साइंस को यूज करने वाला. समझ में आ रहा है? ठीक. एक लाइटर है, लाइटर वो साइंटिफिक इन्वेंशन है, isn't it? उससे आप किसी का झोपड़ा जला सकते हो, तो उसमें लाइटर की गलती नहीं होती. किसकी गलती होती है? जलाने वाले की. उसी लाइटर से उस झोपड़े के अंदर आप अगर दिया जलाओगे तो वो भी लाइटर का बड़प्पन नहीं है या फिर उसका नोबल वर्क नहीं है, वो यूजर. तो साइंस अपने आप में कुछ नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट है. ये इंस्ट्रूमेंट है, राइट. इसको यूज करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है. इसको यूज करके मार भी सकता हूं मैं, राइट. इसकी गलती नहीं है. इंस्ट्रूमेंट्स आर वैल्यू न्यूट्रल. पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट,
राइट? आप कैसे यूज करते हो आप पे डिपेंड करता है ना। अगर वो इंस्ट्रूमेंट है तो किस चीज का इंस्ट्रूमेंट है, व्हाट डज इट इन्वॉल्व? पॉलिटिक्स is an instrument through which you get into relationship. Plus, it is the only instrument that solves disputes, conflicts peacefully. Where politics ends, conflict starts. Where politics ends, war starts. And wars are not affordable to anybody. Neither to victor nor to loser. समझ में आ रहा है? अब मैं ये भी समझाऊं क्या कि समझ गए? पानीपत की बैटल, लोग बोलते हैं कि मराठाओं का पानीपत हुआ था। पानीपत दोनों का हुआ था। पानीपत अब्दाली का भी हुआ था जीतने के बावजूद। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 किसकी मस्ती थी? यूरोपियन पावर्स की। ग्रेट यूरोपियन पावर्स, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, राइट? जापान एशिया में एग्जांपल के तौर पे। एंड दीज पीपल हैड देयर एम्पायर अक्रॉस द वर्ल्ड, इजंट इट? लेकिन दो वर्ल्ड वॉर खेले उन लोगों ने। आफ्टर 2 वर्ल्ड वॉर्स ऑल दीज पावर्स वेर फिनिश्ड फॉरएवर। वो जीते कि हारे मैटर नहीं करता है, जीतने वाले भी हार गए, हारने वाले तो हार ही गए थे। Germany, Italy, Japan lost the war, right? Britain, France, they won the war. But in spite of that, all these powers were never great powers again. और जो लोग वॉर से दूर थे comparatively, that is US and USSR, these two powers emerged as super powers. जो लोग घर में वॉर लेके आते हैं वो मूर्ख होते हैं। वॉर should be avoided at any cost. ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए। कुछ ऐसे लोग हैं वो प्रैक्टिकल एग्जांपल से नहीं समझते, उनको ना स्पिरिचुअल लेके आना पड़ता है एग्जांपल। आई हैव दोस पॉइंट्स एज वेल। श्री कृष्ण ने बोला था युद्ध अंतिम चयन होना चाहिए। श्री कृष्ण ने बोला मतलब बात ही खत्म, राइट? People will blindly follow. People don't follow, that's different thing. श्री कृष्ण की मूर्ति बना के उसका अभिषेक करते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। एंड दिस इज ट्रू अबाउट एवरी रिलीजन। फिर मैं बोलो साहब हिंदुइज्म द्वारा शुरू हो गए, यू ओनली टॉक अबाउट हिंदुइज्म। नहीं रे, बीइंग अ हिंदू आई नो हिंदुइज्म, राइट? वी वुड टॉक अबाउट ऑल द रिलीजन्स। बाय द वे, इन इंडिया देयर आर मेनी रिलीजन्स एंड उनका एक काफी बड़ा इंपैक्ट रहा है हिस्ट्री के ऊपर। वी वुड टॉक अबाउट देम, डोंट वरी। सभी के बारे में एग्जांपल दिए देंगे, है ना? और ये आप अगर ऑब्जर्व करोगे महाभारत की स्टोरी तो आपको समझ में आएगा कि जितना प्रिपरेशन उस वॉर का श्री कृष्ण ने किया था किसी ने नहीं किया, और उस वॉर को रोकने के लिए जितना प्रयास श्री कृष्ण ने किया था उतना भी किसी ने नहीं किया। that looks like a contradiction but it is not. कभी मैं समझाऊंगा। सो पॉलिटिक्स क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ नेगोशिएशंस, टॉक्स, बार्गेनिंग। गेटिंग दिस? तो उसी को पॉलिटिक्स बोला जाता है। एक बात बताओ, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टोन एज, जहां पे इंसान जंगलों में इधर उधर घूम रहा था 2 पत्थर लेकर के, है ना? तो वो जो लाइफ था वहां पे हमने पढ़ा है, आई थिंक 3rd स्टैंडर्ड, स्टोन एज मे बी 3rd स्टैंडर्ड, है ना? क्या पढ़ा था उसमें? ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स। क्यों? हाँ, टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमल्स, मतलब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इजंट इट? तो ग्रुप में क्यों? अच्छा, ग्रुप में आकर के उनको प्रोटेक्शन मिला क्या? नॉट ऑलवेज है। मेनी अ टाइम्स नॉट जस्ट सिक्योरिटी, इवन सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज समथिंग दैट यू वांट। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, समझ में आ रहा है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा गिफ्ट है जो शापित गिफ्ट है। शापित मतलब जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो काम नहीं करता। एग्जामिनेशन हॉल, जंगल में वो सामने शेर है, काम करना बंद हो जाता है, राइट? तो जब लोग ग्रुप में रहने लगे, ऐसा तो नहीं कि शेर ने इनके ऊपर हमला किया ही नहीं, क्या होगा?
सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो ये कैसे आता है? एक बात बताओ, विदाउट टॉक्स एंड नेगोशिएशन पॉसिबल है? कैन यू फॉर्म अ ग्रुप विदाउट टॉक्स एंड नेगोशिएशंस? तो व्हाट स्टार्टेड फर्स्ट, पॉलिटिकल प्रोसेस की सोशल? सोचते रहो। हाँ बोलो। हाँ हाँ, कहाँ पढ़ा है? अच्छा तू बता। लेकिन सोसाइटी बनाने के लिए क्या बात नहीं करनी है क्या? जब टॉक्स करते हो, निगोशिएट करते हो, राइट, यू डिसाइड द रूल्स ऑफ द ग्रुप, तो वो क्या है? वो कौन सा प्रोसेस है? इस पॉलिटिकल प्रोसेस। एक बात बताऊं क्या, ये बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने कहा है ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, ह्यूमंस आर पॉलिटिकल एनिमल। मैं पॉलिटिकल प्रूव करने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? बिकॉज सोशल सभी को पता है। आर यू गेटिंग दिस? और ये दोनों अपने आप में ट्रू है। वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट स्टार्टेड फर्स्ट, बट अरिस्टोटल वाज सो वेरी राइट इन सेइंग दैट ह्यूमन बीइंग्स आर पॉलिटिकल एनिमल्स, ऑल ऑफ देम, राइट? हम सब, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है सोसाइटी में रहना। पॉलिटिकल का मतलब समझो आप। तो एक बात तो क्लियर है, दो चीजें उसमें, फॉर्मल पॉलिटिक्स दैट इज गवर्नमेंट स्टेट, इनफॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, राइट? एंड बिकॉज वी लिव इन पॉलिटिकल सिस्टम, राइट, there is a political aspect dimension to our life, ठीक? थ्रू आउट हिस्ट्री ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमको पढ़ना है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ठीक है? देन देयर इज क्लियरली सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक, ये समझना आसान है वैसे, राइट, एंड कल्चरल। नाउ द क्वेश्चन कम्स, इसके अंदर क्या पढ़ना है? व्हाट आर वी सपोज टू स्टडी से इन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट? यू कैन सी देयर इन फ्रंट ऑफ यू, टाइप एंड नेचर ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, राइट? वो कैसा है, उसका टाइप क्या है, मोनार्की है कि रिपब्लिक है? अगर मोनार्की है तो सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड? द फर्स्ट टेल्स यू टाइप, द सेकंड टेल्स यू नेचर। आर यू गेटिंग दिस? टाइप एंड नेचर ऑफ पॉलिटी। देन एडमिनिस्ट्रेशन, administration. See, administration is very much part of political system, there is no doubt about that, but very important part, because everything that political system does is implemented by administration. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो पढ़ना पड़ेगा। देन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, किसी भी एक काल में, एनी वन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, you have to study important political events of that time period. Okay, ये सब क्यों करना है? सिंपल सी बात है, ये सब क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं एग्जाम में, इसलिए करना है। वी हैव वन सिंपल आंसर, राइट? ये सब ठीक है, हिस्ट्री में क्या है वगैरह वगैरह, वी हैव टू अल्टीमेटली गेट डाउन टू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। इसके ऊपर कई बार सवाल आए एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। क्या होता है बताया क्या? दे टेल यू नेम ऑफ अ पोजीशन, राइट, एंड दे विल आस्क यू कि क्या है। ऐसा है कि as regards ancient history of India, Mahataras were 1 2 3 4. So that is clearly administrative question. समझ में आ रहा है? So type, nature of polity, administration, and important political events. So this is what we cover in political aspect of history. Second, social aspect, nature and structure of society. Every society has got some structure, ठीक है? European society is based on what is called class, economic concept है। बोलते हैं ना कि हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है, हम आजकल बोल रहे हैं, लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास, वर्कर क्लास, ये जो है। इंडियन सोशल हायरार्की इज बेस्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड कास्ट, और इसके पहले वर्ण। समझ में आ रहा है? सो अब ये जो स्ट्रेटा बनते, स्ट्रेटा जानते हो ना, स्ट्रेटा, स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, उसको बोला जाता है स्ट्रैटिफिकेशन इन ए सोसाइटी, स्ट्रैटिफिकेशन इन ए सोसाइटी। So every society has got some kind of structure, and that tells you the nature of that society as well, if you study the structure properly, ठीक? कास्ट सिस्टम है या फिर क्लास सिस्टम है? क्लास सिस्टम tells us about what? Economic inequality, right? Caste system tells about
सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एंड कास्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, कल्चरल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सब कुछ देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रक्चर ये हो गया जनरल एक एस्पेक्ट स्ट्रक्चर का। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? देयर इज समथिंग कॉल्ड जेंडर, राइट? An important aspect of any society in any time period is position of women, how women are treated in a particular society. And in general, we see a kind of decline in the position of women in Indian history up to that time where we see social reforms coming up, modern times. Okay. So these are the things that we are supposed to study in what is called social aspect of history. कहीं पे भी दुनिया में, ओके, मैं जनरल बात कर रहा हूं राइट नाउ। देन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, व्हाट ऑल थिंग्स डू वी स्टडी हियर? प्लीज पे अटेंशन। टाइप ऑफ द इकोनॉमी, मेजर ऑक्यूपेशंस, कॉमर्स, करेंसी एटसेट्रा लिखा है। ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्जांपल उसमें आएगा, ट्रेड नेटवर्क्स आएगा, सो डिफरेंट थिंग्स विल कम हियर, इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट्स, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स एटसेट्रा, है ना। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय टाइप? Doesn't matter where you live, right? Any society, it goes through certain stages of economic development. मैं आपको in general बता रहा हूँ, quite simplified. And when you simplify things, sometimes you lose some details. But in the beginning, that is fair enough. पहले आप समझो चीजों को, right? बाद में डिटेलिंग कर सकते हो, isn't it? Okay. So every economy goes through different stages. First, always is nomadic, राइट? अब ये और यूज करना है कि नहीं करना है मैं बाद में समझाता हूं। देयर इज अनदर टर्म पेस्टोरल, नोमैडिक या फिर पेस्टोरल, ठीक है। दूसरा स्टेज जो होता है दैट इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। थर्ड, मर्केंटाइल इकोनॉमी। फोर्थ, industrial economy, and the last one, latest, that is service based. अब इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, आजकल लोग नॉलेज बेस्ड भी बोल रहे हैं, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, बट आई विल स्टॉप हियर बिकॉज ये दोनों काफी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 20th सेंचुरी ये हुआ, उसके बाद फिर ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट 4 स्टेजेस है, those are relevant. When you talk about nomadic economy, right? यहाँ पे how do we decide कि वो nomadic है? Nomadic मुझे कहते हैं ना, nomadic पता है ना, भटकने वाले लोग होते हैं। You know, पुराने समय में हर कोई भटक रहा था, right? From one place to other place. And for your information, जो human evolution है, अरे वो आपने बुक पे देखा होगा ना, वो होता है ना हिस्ट्री की बुक पे एक डायग्राम होती है, इंसान झुका हुआ फिर ऐसे खड़ा होता है, तो एक इवोल्यूशन है। कौन सा इवोल्यूशन? होमोनिड से लेकर के होमो इरेक्टस, राइट? वहां से लेकर के होमो सेपियन, वहां से होमो सेपियन। सो दीज आर स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो नोमैडिक फेज वो है जहां पे इन द फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दे वर नोमैड्स, जिसको होमोनिड बोला गया, मतलब इंसान का थोड़ा सा एक काइंड ऑफ प्रीकर्सर, राइट? उसके सबसे ज्यादा एविडेंस एंड रादर द ओनली प्लेस वेयर वी गॉट इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो वहां से माइग्रेशन हुआ होगा। दिस इज हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? ए काइंड ऑफ thesis based on the current evidence which may be falsified later on. हिस्ट्री में ये होता है कि यू आर ऑलवेज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। सो सिंपल सी बात है, माइग्रेशन तो हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, राइट? अफ्रीका से हुआ होगा, फिर कहीं और से हुआ होगा। सो लोग भटक रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, फूड के सर्च में, रिसोर्स के सर्च में। दैट लाइफ इज कॉल्ड नोमैडिक। अब यहाँ पे हाउ डू वी डिसाइड वेदर पर्टिकुलर इकोनॉमी इज नोमैडिक और नॉट? व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम दैट सोसाइटी are dependent on what is called hunting and gathering occupation. So when the major occupation is hunting and gathering, that economy is called
nomadic economy, right? एक और टर्म pastoral, इसमें भटकना होता है, right? There's no doubt about that, right? People migrate from one place to other place, but the major occupation here happens to be cattle rearing and breeding. Pashupalan, right? Cattle rearing and breeding. That is called pastoral economy. So many a times you would see this nomadic or pastoral. People generally take it like synonyms, but it's not synonym. There's a difference, technically speaking. And many a times it is difficult to differentiate these two because people practice both hunting, gathering, as well as cattle rearing and breeding. But a general evolution ये देखा गया है कि they begin with hunting, gathering, and slowly there's a transition from hunting, gathering to cattle rearing and breeding. उसको आप domestication of animals बोलते हैं. What is called domestication of animals. Okay. Next stage is agriculture economy. इंसान जब settle हो जाता है, जो हुआ था, तो agriculture शुरू किया, right? When agriculture becomes major occupation, आप ये मत समझना कि जब ये stage था agriculture नहीं था, उसका beginning है वहां पे. But when most of the people are involved in agriculture or agriculture becomes the major occupation, so to say, right? That economy is called agricultural economy. समझ में आया? Okay. Agricultural economy ये कब बनती है? When you have water and fertile soil, right? So most of the civilizations sprang up across river valleys. Nile river हो या फिर Indus river, right? Egyptian civilization, Indian civilization, Indus Valley civilization. So river water, alluvium soil, right? Production. When production is more than what is required in a particular year, that is called surplus. Right? जब surplus आता है तो इंसान क्या करता है? उसको बेचता है मार्केट में, तो मार्केट शुरू होता है. और एक बार ये शुरू हुआ ना, आज भी कोई भी फार्मर क्या करता है बताओ मुझे. उसका जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें से पहले ये सोचता है कि मुझे, मेरे फैमिली को, हाउ मच डू आई नीड फॉर अ ईयर, वो रख के जो भी एक्स्ट्रा है ही वुड सेल इन द मार्केट. उसके बाद जो पैसा आ जाए, राइट? या फिर बार्टर सिस्टम भी है, ऐसा नहीं कि एवरी टाइम देयर इज अ करेंसी, एंड दैट कुड बी अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी, करेंसी, कॉइंस. उसकी बात करनी है हमको आगे जाकर. सो जो आप बेचते हो, राइट, उसके बाद यू वांट टू बाय समथिंग दैट क्रिएट्स डिमांड फॉर different artifacts, different things, right? Pottery हो गया, pots, right? Toys and different other things, right? So that gradually leads to what? Trade and commerce. क्या शुरू हो गया? Trade and commerce. When most of the people are involved in mercantile activities, which is nothing but trade and commerce, right? That economy is called mercantile economy. समझ में आया? ठीक है. जब कॉमर्स बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, तो लोगों का डिमांड बढ़ जाता है डाइवर्स चीजों के लिए, राइट? सो मोर एंड मोर पीपल गेट इन्वॉल्व इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, राइट? सो जब इंडस्ट्रीज बढ़ते हैं एंड इंडस्ट्रीज बिकम मेजर ऑक्यूपेशन, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. समझ में आया आपको? एंड नाउअडेज वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विस बेस्ड एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, राइट? सो दिस इज द डेवलपमेंट दैट वी सी अक्रॉस different time periods in India and elsewhere as well. Okay, so when we talk about economic aspect, you are supposed to talk about the type of the economy, right? Major occupations in that. It could not be one occupation only. हाँ, आप nomadic की बात करें, हो सकता है कि वहाँ पे ये major है और ये भी है. इसकी बात करो, यहाँ पे ये भी है, ये भी है और ये भी है. So you may have number of occupations in a particular economy, but उसमें से जो सबसे बड़ा है उसके बेस पे उसको नाम दिया जाता है. Nomadic, pastoral, agricultural, and so on. So major occupations. Commerce अगर है तो उसके बारे में बात करो, trade and commerce, right? Currency है तो currency के बारे में बात करो, right? Transportation, isn't it? And different other aspects of economy. So this is what we study in economic aspect of history. ठीक है? Then cultural aspect. People, have this misconception that UPSC only asks question on culture. ये सबसे बड़ा misconception है. सबसे पहले तो कल्चर क्या है ये पता नहीं होता, राइट? व्हाट इज कल्चर ये समझना पड़ेगा. और दूसरी बात, सवाल कैसे आए हैं, मैं उसकी बात करता हूँ आगे जाकर के. आई विल टॉक अबाउट दैट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी हैज आस्क्ड सो फार. बट बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी सिलेबस.
right? Okay, so we'll talk about all those things, but let us first understand in general what is that cultural aspect and what okay. Culture, way of life. Democracy, way of life. Religion, way of life. मैंने 3 चीजें बताई आपको, ठीक, क्या क्या बताया मैंने, इसने एक बताया, व्हाट इज दैट, कल्चर इज वे ऑफ लाइफ, डेमोक्रेसी इज वे ऑफ लाइफ, रिलीजन इज वे ऑफ लाइफ। जनरल बातें नहीं चलती रही यूपीएससी में, और पता है क्या, अश्विनी सेड दिस, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू कमेंट लाइक दिस। क्यों? आप अगर यहां बोलोगे, यहां गलतियां करोगे, तो सुधारने का चांस होता है। इधर गलतियां नहीं करोगे ना, तो गलतियां कहां होंगी, एग्जामिनेशन हॉल में, दैट इज डेंजरस। सो प्लीज स्पीक अप, आई अप्रिशिएट दिस। पता नहीं आप लोग क्यों हंसते हो, हंसना नहीं चाहिए। इवन इफ आई स्माइल, मेरा स्माइल का रीजन अलग होता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं ऐसे आंसर्स, इसलिए हंसता हूं। आप अलग कारणों से हंसते हैं, उससे बोलने वाले चुप होते हैं। आई डोंट लाइक इट, आई वांट पीपल टू स्पीक इन द क्लासरूम, सो प्लीज डोंट डू इट। व्हेन आई स्माइल इट्स लाइक अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। वे ऑफ लाइक, अलग अलग चीजें लोग दिमाग में रख के बैठते हैं, ऐसा नहीं है। उस ठीक है, वो स्पेसिफिक बात क्या है, व्हाट इज कल्चर स्पेसिफिकल, व्हाट इज रिलीजन स्पेसिफिकल, व्हाट इज डेमोक्रेसी स्पेसिफिकल। कल मैंने बात की ना, प्रिसीजन चाहिए, शार्पनेस चाहिए, वेगली बात नहीं कर सकते। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वे ऑफ लाइफ, नीचे ऑप्शंस है, डेमोक्रेसी, रिलीजन, कल्चर। शार्पनेस, राइट, कस्टम्स, आइडियाज, बिलीव्स ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक, कस्टम्स, आइडियाज, बिलीव्स, ठीक। नाउ एक बात बताओ, आइडियाज और बिलीव्स कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं इंडिया के? यस और नो? तो इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो, भूल गए क्या कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज स्टिल देयर। There are number of ideas and beliefs in constitution. And how many of you know that democracy has got its own customs, traditions, precedents? Hello, बोलते हैं democratic customs, traditions. Not everything is written in the constitution. Huh? It is not possible. So every democracy develops its own traditions, customs. फिर से quite general है, यही होता है रे। When we have some kind of societal understanding, मतलब सोसाइटी में जो बोला जाता है वो कल्चर। तो मैं वही बता रहा हूं फिर से, वेरी स्पेसिफिकली कल्चर क्या है, यूपीएससी का सिलेबस बोलता है आपको खुद, और यूपीएससी के सिलेबस से ही उठाया मैंने। व्हाट इज दैट? आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर। I am aware of the fact that UPSC has only mentioned these 3: art forms, architecture, and literature. Can you think of literature without knowing the language in which it was written? No. So this is a hidden aspect of the syllabus. So you should know the development of language and script in India. India का पहला स्क्रिप्ट कौन सा था? इसी टाइम पर, मतलब दिल पे मत लेना कि मैं डे 1 पे आपको सवाल पूछ रहा हूँ, to make it interesting, nothing else. I'm anyway going to talk about all these things. हाँ बोलो। हाँ, पाली लैंग्वेज थी, टेक्स्ट नहीं, स्क्रिप्ट नहीं। मैं स्क्रिप्ट पूछा हूँ, लिपि और भाषा। हाँ, पहले लिपि बताओ और फिर भाषा, दोनों बताओ, चलेगा? संस्कृत, ओके। कब से मैन्युस्क्रिप्ट बोले जा रहे हो? व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट? मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? हाँ, कुछ लिखा हुआ, बुकलेट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट नहीं है रे वो। डोंट थिंक ऑन दिस लाइन। 2 बार देखा मैंने मैन्युस्क्रिप्ट, आई वाज इग्नोरिंग। मैन्युस्क्रिप्ट इज नॉट स्क्रिप्ट। लिखा हुआ कुछ डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। एक मैं आपको सेंटेंस बोलता हूँ। आर क्षमा शास्त्री, राइट, फाउंड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अर्थशास्त्र 1904। इसका मतलब क्या है? कौटिल्य ने जो बुक लिखा था अर्थशास्त्र नाम का, वो उसका मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी कब मिली? 1904 में। सो दिस इज हाउ दैट वर्ड इज यूज्ड, ठीक है?
ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग जो भी बोल रहा है। द फर्स्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया वाज हड़प्पन स्क्रिप्ट। फर्स्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया इज हड़प्पन स्क्रिप्ट। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो अबाउट द लैंग्वेज बिकॉज हमने वो पढ़ा ही नहीं, स्क्रिप्ट उसको डिकोड नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, रादर सेकंड आंसर। अगर मैं सवाल आपको ये पूछूं द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया, यू मस्ट आंसर Harappan script, right? And if I ask you with little bit modification of the question, oldest deciphered script of India, Brahmi, that was there somewhere in the answer. जिसको हम जान पाए हैं, जिसको हम समझ चुके हैं, that script is Brahmi, oldest. समझ में आ रहा है आपको? लेकिन oldest script is Harappan script. और रही बात लैंग्वेज की, तो उसमें संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है. So these are oldest languages of India. Are you getting this? Okay. So there has been literature in many languages. Sanskrit में है, प्राकृत में है, पाली में है, right? And then there is literature in different versions of Prakrit. Abhransh was one of them. Probably the last stage of Prakrit की variations. और अपभ्रंश से बाद में अलग-अलग regional language का development है. Regional language में भी काफी सारा literature है. तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, अलग अलग लैंग्वेज में, बंगाली, there is literature, right? So when you talk about literature, you have to invariably talk about language, right? Then when you talk about art forms, इसमें क्या आता है रे? Art forms में painting, right? Music, dance, sculpture and even architecture. तो अलग से क्यों लिखा है? That is because architecture अपने आप में एक बहुत बड़ा एक म्यूजियम है आर्ट का, and there have been lot of buildings in India, right? So construction has been a major activity. तो उसको अलग से आपको फोकस में पढ़ना पड़ेगा. So art forms, architecture, language and literature, इसको कल्चर बोलते हैं. This is culture. अब वो जो बात बताई गई, I think somebody said this, that customs, ideas, beliefs वो रिफ्लेक्ट होते हैं, right? आपको पता है क्या जिसको आप आर्किटेक्चर बोलते हो, फॉर एग्जांपल, या फिर लिटरेचर, राइट? कोई भी एक ले लो, आर्किटेक्चर या फिर लिटरेचर. व्हाट यू टॉक्ड अबाउट, आइडियाज, राइट, बिलीव्स, कस्टम्स. आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर रिफ्लेक्ट religious ideas, beliefs, customs. They reflect political ideas, beliefs, customs, social ideas, beliefs, customs, and many times economic as well. तो ये जनरल टर्म्स है. दीज आर जनरल टर्म्स. अपने आप में कल्चर का अलग मतलब है. अच्छा, ये जो लिखा गया आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, इससे क्या पता चलता है? ये सब कुछ पता चलता है. पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस आइडियाज, कस्टम, बिलीफ्स ऑफ द पीपल, राइट? कल्चर मैनिफेस्ट होता है रे, खुद को व्यक्त कर जाता है किसमें? इन सब चीजों में. आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, लैंग्वेज. So these are manifestations of culture. क्या ये? संस्कृति की अभिव्यक्ति, राइट? वो खुद को व्यक्त करता है कहां पे? इन फॉर्म्स में, आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, लिटरेचर में. समझ में आया? So this is what we study in history. ठीक है. Now see, having talked about what is history, having talked about what do we study in history, let us come to that point. What is Indian history? इंडिया में हिस्टोरिकल पीरियड कहां शुरू होता है, राइट? वहां पे ही क्यों होता है? ये सारी बातें हम करेंगे. हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद वैदिक एज. ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं सर तो वैदिक एज से शुरू होना चाहिए. नो. ठीक है. बेसिस क्या है? बेसिस क्या है? रिकॉर्ड्स कहां से है? तो कहां से रिकॉर्ड्स मिलते हैं हमको? वैदिक एज से. अभी तो बोला मैंने कि हड़प्पन से आते हैं. हाँ, लेकिन उसका मतलब पता नहीं हमको. तो वो कहां आएगा? वो कहां आएगा? हड़प्पन proto history, like history. We have the records, but we are not able to decipher it, decode it. That is called proto history, right? जब कभी भी हड़प्पन स्क्रिप्ट अगर डिसाइफर हो गई तो वहां से फिर हिस्ट्री का बिगिनिंग होगा. समझ में आ रहा है? It is not any kind of personal preference that we are saying that वैदिक एज से शुरू होता है. It's not personal preference. It is the basis जिसके ऊपर हिस्टोरिकल पीरियड डिसाइड होता है,
Okay. So proto history है Harappan civilization because records are available, but we are not able to decipher it, right? Vedic age क्यों? Vedic literature की basis पे we understand about Vedic age, right? Now the question comes, ये written है क्या? Okay, sorry. ये written है? हाँ, क्या बात? एक सेकंड रुको थोड़ा सा. I will clear the air. Wait for some time. Written form में मिला है, but हम तक वो written form में आया है जब वो लिखा गया था, लिखा नहीं गया, वो रचा गया. तो हम कौन सी बात कर रहे हैं? वो टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड में कुछ लिखा हुआ मिला है. तो वैदिक टाइम पीरियड जो है, जिसको वैदिक एज बोला जाता है, उस वैदिक एज में लिखा नहीं गया था, वो रचा गया था. वेद रचे गए. बहिणाबाई चौधरी मराठीमध्ये कवित्री बघा. शी वॉज इलिटरेट बट स्टिल शी कंपोज्ड पोएम्स. तो ये वर्ड यूज होता है कंपोज्ड, राइट, नॉट रिटन. ओरली आप उसको रचते हो, राइट. तो वेद रचे गए थे. सो यस, इट इज ट्रू दैट वैदिक लिटरेचर वाज ओरल when it was composed. Later on it was codified, written down. समझ में आया? ठीक है. So we have oral records from Vedic age which make sense, we understand them, and that is why historical period in India starts with Vedic age. ये जो है period of Harappan civilization, ठीक है, it is proto history. We have talked about it because records are taken, we are not able to understand them, right? Any period going beyond Harappan civilization in the past is called prehistory. Why? Because records ही नहीं है. There are no records, right? अब आप बोलोगे कि स्टोन एज का पेंटिंग है भीमबेटका केव्स में, है ना? बट वो पेंटिंग्स है, राइट? इट्स आर्ट फॉर्म्स, नॉट राइटिंग. ठीक है. सो रिटन या ओरल कुछ मिलना चाहिए. सो वेरियस फेज ऑफ स्टोन एज कम अंडर व्हाट इज कॉल्ड प्रीहिस्ट्री. उसमें क्या आएगा? देयर आर 4 स्टेजेस, यू नो दैट वेरी वेल. क्या है वो? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, Neolithic and Chalcolithic. These are 4 stages of Stone Age which fall in the category of prehistory. So prehistory, proto-history, and historical time period. Are we clear on this now? This is where we are in a position to understand what is called syllabus, right? And when you talk about UPSC syllabus, you have to talk about syllabus of both prelim and mains. There is slight difference, and that's why we need to discuss both. प्रीलिम का सिलेबस कल जो बात कर रहा था मैं, राइट, इट इज इन वन फ्रेज. क्या फ्रेज है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. yesterday we understood the meaning of it. What is it? Yes, we know that Indian national movement is very much part of what is called history of India, but there is special emphasis on Indian national movement. What it means is, right, more questions will be asked from this section, right? Okay. किसी भी देश का हिस्ट्री या फिर किसी भी समाज का हिस्ट्री 3 हिस्सों में आता है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. ये 2 जो कंपोनेंट है, राइट, 2 कंपोनेंट्स. एंड मॉडर्न का कुछ हिस्सा जो यहां तक आएगा, मिडिल पोर्शन तक, राइट. इतना बड़ा हिस्ट्री है, इसके ऊपर जितने सवाल आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उतने सवाल अकेले इस टॉपिक पे आते हैं. नंबर इज ऑलमोस्ट सेम. दैट इज व्हाई दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री हैज गॉट सम इंपॉर्टेंस. समझ में आया? अकॉर्डिंग टू सिलेबस. Now, when you talk about syllabus in this manner, right, history of India and international movement, उसको थोड़ा सा और let us break it up in different parts. Okay. If you talk about ancient and medieval, right, UPSC ने क्या बोला है पता है क्या? Focus would be on culture. Now you understand culture, right? So focus कहाँ रहेगा? Culture के ऊपर. तो सवाल एडमिशन के ऊपर क्यों पूछे? एक सवाल आया था संगम लिटरेचर, कल मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में, आज वो पूरा दिखाऊंगा. तो उसमें क्या पूछा है? सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस. क्यों? अगर फोकस कल्चर पे है, व्हाई यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस ऑन पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री? क्या करना है? पूछना है जाके यूपीएससी को, कुछ नहीं बोलेगा वो. प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? एब्सोल्युटली. कल्चर आइसोलेशन में नहीं होता रे. कल्चर हैज गॉट इम्पैक्ट ऑन अदर एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक,
and those aspects have impact on culture internal. तो एक इंटरेक्शन है. यूपीएससी को पूछोगे मेरा वो आंसर देगा नहीं, देगा तो कैसे देगा पता है क्या? हमने सवाल संगम लिटरेचर को पूछा और लिटरेचर आता है, तो आपने तो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन पूछ ले, वो संगम लिटरेचर से ही पता चलता है, इसलिए पूछे. फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड यू गेट टू नो फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्राइब करना, राइट, रॉक के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, टेंपल वॉल्स के ऊपर, पुराने समय का लिखा हुआ है. तो ये जो है दीज आर ऑल आर्किटेक्चरल फीचर्स, उससे इंफॉर्मेशन मिलती है. आर यू गेटिंग दिस? तो डज दैट मीन वी आर सपोज्ड टू स्टडी एवरीथिंग? इट बिकम्स स्केरी. हाँ, इससे अच्छा फिर हिस्ट्री ऑप्शन ले ले. ऐसा नहीं है. There is a difference, right? I would talk about that. So focus is on culture. कहां पे? Ancient, medieval और culture से जुड़ी हुई बाकी चीजें. This expects you to study culture with more focus and bare minimum understanding of political, economic and social aspects. समझ लगा रहे? Okay. Now culture तो एक important topic है हमारा, right? People consider history मतलब art and culture. ऐसा नहीं है. There is one component. और जिसको आप आर्ट एंड कल्चर बोलते हो उसको लोगों ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया मार्केट में. मार्केट बनाओ ना यूपीएससी, यू आर इन दैट मार्केट राइट नाउ. सो इफ यू लुक एट द कल्चर बुक्स, मार्केट में मिलते हैं ना कल्चर की बुक्स, दोज आर नॉट ऑलवेज यूजफुल. उसका रीजन मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जामिनेशन. आपके ऊपर उस बुक्स में कल्चर फेंका जा रहा है. कल्चर कोई भी बुक देखो कैसे होता है, स्कल्पचर, पेंटिंग, है ना, डांस, म्यूजिक, मतलब कल्चर के बंडल्स बना के फेंक रहे हैं आपके ऊपर. ये स्कल्पचर ले लो, ये पेंटिंग ले लो. अरे ठीक है, लेकिन कौन सा टाइम पीरियड? ये संगम लिटरेचर, उसमें क्या क्या ये बुक्स है, ये ऑथर्स है. ठीक है, क्वेश्चन सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर आया, कैसे लिखे? People have artificially separated what is called culture from the overall historical development, which is very horrible kind of thing to do. समझ में आ रहा है? Expectation of the commission is different, where they're expecting you to study culture along with that other things, bare minimum, right? ऐसा नहीं कि हिस्ट्री ऑप्शनल की तरह आप इन डेप्थ पढ़ोगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, नहीं, bare minimum. तो अब सवाल ये आता है कि bare minimum कहां से मिलेगा? Isn't it? हाँ, यहां से मिलेगा. तो आप ठीक से समझ लो, मैं आपको वैसा कल्चर पढ़ाने वाला नहीं हूं. कैसा? जो बंडल्स में फेंका जाता है, विच इज यूजलेस. समझ में आ रहा है? अब एक कल जो मैंने सवाल आपको बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक एंड इन्वेजन ऑफ तिमूर, ये कौन सा कल्चर है मिडिवल का? आर यू गेटिंग दिस? तो क्लियरली क्वेश्चन इज ऑन पॉलिटिकल एस्पेक्ट. Are you getting this? मैं आपको नोट्स दिखाता हूं बाद में, डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द लेक्चर. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है और आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें गैप नहीं होना चाहिए, राइट? सो आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सिलेबस राइट नाउ. वी वुड आल्सो टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? ओके. सो एंशिएंट मिडिवल में फोकस ऑन कल्चर. फोकस इसका मतलब है कि उतना ही पढ़ना है. There are other aspects as well. Then modern history of India, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, ये दो. ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है बैटल ऑफ प्लासी से लेकर रिवोल्ट ऑफ 1857 तक, उसको बोला जाता है कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, राइट? और ये जो टाइम पीरियड है 1858 टू 1947, दैट इज कॉल्ड क्राउन रूल, रूल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट? ओके. तो इतना बड़ा हिस्ट्री है, ऑलमोस्ट रफली 200 इयर्स, 190 इयर्स रफली, है ना. लेकिन जिसको इंटरनेशनल मूवमेंट बोला गया है, दैट इज दिस टाइम पीरियड 1885 टू 1947. मतलब 1757 से लेकर 1885 तक का भी मॉडर्न हिस्ट्री है. आर यू गेटिंग दिस? तो क्वेश्चन इसके ऊपर स्पेशल एम्फेसिस. तो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे क्या है वो भी बात हम करने वाले हैं, नो डाउट अबाउट दैट, राइट? वी वुड कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिलेबस, बट हमको ये भी पता होना चाहिए कि वेयर इज द एम्फेसिस, क्वेश्चन कहाँ ज्यादा आ रहा है. सो इट इज इंटरनेशनल मूवमेंट, राइट? ओके. देन देयर इज पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया. दिस ओवरलैप्स विद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स. मैं आपको एक बात बताता हूँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या है बताओ? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है कि नहीं? आपको पॉलिटी में पढ़ते हो, पता है? उसमें 5 ईयर प्लानिंग आएगा क्या? वो कहां पढ़ते हो आप? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो. उसमें फॉरेन पॉलिसी वो आप आईआर में पढ़ते हो. ठीक है. ऑलमोस्ट एवरी कंपोनेंट. यू टॉक अबाउट ग्रीन रिवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, यू स्टडी दैट इन इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर. मैं डे 1 को आपको बता रहा हूं कि आई वुड कवर ऑल दिस थिंग्स, और जब खत्म करूंगा एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सब कुछ, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, राइट? ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, कि बताओ पोस्ट इंडिपेंडेंस का कुछ पढ़ाना है क्या? एंड माय एक्सपीरियंसेस, पीपल से नो. व्हाई? बिकॉज वो ऑलरेडी हो चुका होता है अदर सब्जेक्ट्स में. फिर भी मैं क्या बोलता हूं कि अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि नहीं अच्छा कवर नहीं हुआ, या फिर आप चाहते हो कि ये पढ़ना है, तो लेट मी नो. गेटिंग दिस? और ये जो ओवरलैप है ना, ये बाद में करंट के साथ हो जाता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. इफ यू टॉक अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, राइट, you would definitely talk about what? Instrument of accession, Indian states का accession with Union of India, right? उसके बाद शुरू होता है reorganization. जब accession हो रहा था, 3 स्टेट्स ने प्रॉब्लम किया. कौन से? जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर, राइट? है ना? वो आप पढ़ते हो, राइट? उसके बाद फिर लॉन्ग प्रोसेस ऑफ व्हाट? रीऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है. 3 ग्रुप्स बनाए गए, ए बी सी कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? उसके बाद फिर बहुत सारे यूटीज को स्टेटहुड दिया गया, और कभी कभी 2 अलग स्टेट बने, जैसे कि महाराष्ट्र एंड गुजरात, फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड बॉम्बे प्रोविंस. तो ये रीऑर्गेनाइजेशन का जर्नी कहां तक आता है? आगे जम्मू कश्मीर तक अभी हुआ है ना. जम्मू कश्मीर इज नाउ इन यूटीज डिवाइड बाय वो यूनियन टेरिटरीज. समझ में आ रहा है क्या आपको? तो रीऑर्गेनाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो करंट से जोड़ देता है आपको. आर यू गेटिंग दिस? तो अगर ये 370 हटाया गया, उसके पहले अगर हम बात कर रहे होते, तो आई वुड हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना. अगर उसके और पीछे चले जाते तो फिर फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड. सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? रीऑर्गेनाइजेशन का. सो इन अ वे हिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सब कुछ आपको करंट समझने में बहुत हेल्प करता है. आप कोई भी थ्रेड ले लो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, राइट? ओके. सो पोस्ट इंडिपेंडेंस डेफिनेटली, दिस इज व्हाट इज देयर इन प्रिलिमिनरी. इफ यू टॉक अबाउट मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताया. इलैबोरेट सिलेबस, ठीक है? व्हाट इज इट? इंडियन कल्चर बोला है ना, और ये बोल दिया यहाँ पे सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम. मतलब स्टोन एज में लोगों ने केव्स में जो किया था, केव्स, वहां से लेकर के गॉथिक आर्किटेक्चर ब्रिटिश काल में जो आया, राइट, वहां तक सब कुछ पढ़ना है, एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? ओके. सो आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, राइट? ओके. दूसरा जो सेंटेंस है, क्लियरली टॉक्स अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री. इसका मतलब ये हुआ दैट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू स्टडी culture for ancient and medieval, but for modern there are other things as well. समझ में आ रहा है क्या आपको? लेकिन सवाल ऐसे पूछे हैं, ancient medieval का भी bare minimum other aspects पढ़ने पड़ते हैं. मैं आ रहा हूँ उधर. ओके. सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री from the middle of 18th century until the present. I'll tell you one thing, ये जो कैटेगराइजेशन है ancient, medieval and modern, इसका बेसिस क्या है? ये ऐसा क्यों किया गया, उसकी बात मैं करता हूं. डोंट वरी, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट दैट. बट एग्जैक्टली वेयर एंशिएंट एंड्स, एग्जैक्टली वेयर मिडिवल स्टार्ट्स, एग्जैक्टली वेयर मिडिवल एंड्स एंड एग्जैक्टली वेयर मॉडर्न स्टार्ट्स, एक तो इन एवरी सोसाइटी इट इज डिफरेंट, राइट? एंड इन ए गिवन पर्टिकुलर सोसाइटी you would see debate among historians. Different historians have different opinions, right? I'll tell you one thing, आप बिपिन चंद्र का बुक पढ़ोगे, है ना? पढ़ना चाहिए ना. मैं आता हूँ उधर, रुको थोड़ा सा.
बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है अगेन, राइट। बिपिन चंद्रा का बुक कहां शुरू होता है पता है आपको? रिवोल्ट ऑफ 1857. So as good as for Bipin Chandra, the modern history starts with Revolt of 1857. If you go for other book, say Grover for example, Grover का book है, it starts with Decline of Mughal Empire. कुछ लोग बोलेंगे नहीं, Battle of Plassey. अलग अलग historians have their own different opinions, but उसकी confusion में हमको जाने की जरूरत नहीं. We are not a student of history in an university. We are student of UPSC. UPSC खुद बोल रहा है मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, तो उसको मान लो और बात वहीं पे खत्म करो. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. सो मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, तो मिडल ऑफ 18th सेंचुरी मतलब 1750. वहां पे तो कोई मेजर कुछ हुआ नहीं है, ठीक है. तो ऐसा कौन सा ईयर है जहां पे कोई मेजर इवेंट है? दैट इज 1757, बैटल ऑफ प्लासी एंड एंटायर फेट ऑफ इंडिया चेंज्ड, राइट. ब्रिटिश रूल का बिगिनिंग इन बंगाल, राइट. ओके, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है. दैट इज कॉल्ड मिडल ऑफ 18th सेंचुरी. वहां से लेकर के प्रेजेंट तक बोला है रे, बट डोंट वरी, प्रेजेंट तक पढ़ने की जरूरत नहीं. आप, मैंने बोला ना आपको कि सारे एस्पेक्ट्स ऑफ अलग अलग सब्जेक्ट में प्लस करंट पढ़ते हैं, तो इतना डरो मत. प्रेजेंट बोलने के बाद क्या बात है, प्रेजेंट तक पढ़ना है, वो करंट में आ जाता है. नॉट टू वरी अबाउट दैट, राइट. इसमें क्या पढ़ना है फिर? यूपीएससी ने बोला यहाँ पे सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज. दैट मींस देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन इवेंट्स, क्वेश्चंस ऑन पर्सनैलिटीज, क्वेश्चंस ऑन इश्यूज. आप कोई भी एक टॉपिक ले लो इसमें का, राइट. You may get a question on Battle of Panipat. You already had that question, right? UPSC previous year question में है पानीपत के ऊपर. पानीपत क्या है? Significant event है, isn't it? आपको सवाल आ सकता है किसी पर्सनालिटी के ऊपर, से फॉर एग्जांपल टीपू सुल्तान करंट अफेयर्स में है, थैंक्स टू कर्नाटका. ठीक है. एंड अगेन ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या बोलते हैं उसका कोई रिलेशन नहीं है आप यहाँ. समझ आ रहा है आपको? तो मैं आपको एक सिंसियर रिक्वेस्ट करता हूं, राइट. व्हाइल कमिंग टू द क्लासरूम, योर कास्ट, रिलीजन, राइट, पॉलिटिकल व्यूज एंड जेंडर बायसेस मस्ट बी केप्ट आउटसाइड द क्लासरूम. अंदर लेके आओगे तो मार पड़ेगी, फिजिकल नहीं. जब मैं कुछ बोलूंगा तो हर्ट हो जाओगे. और यहां पे एक बात बताओ मुझे, हर एक का माइंड संभालूं या पढ़ाऊं? सब्जेक्ट ही ऐसा है कि मुझे बातें करनी पड़ती है, राइट. देयर इज नो एक्सप्रेस इंटेंशन टू हर्ट एनीबॉडी, बट पीपल कम अप विद डिफरेंट सेंसिटिविटीज. दे डोंट कम अप विद सेंसिबिलिटीज, दे कम विद व्हाट? अननेसेसरी सेंसिटिविटीज, एंड दे अननेसेसरली क्रिएट डिबेट्स इन द क्लासरूम. और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे जो डिबेट खड़ा करो, आई एम देयर टू टॉक अबाउट इट एंड आई विल इंश्योर दैट आई विल डिफीट यू. बट उसमें टाइम वेस्ट क्यों करें? मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है बिकॉज आप कंपटीशन में हो. समझ में आ रहा है कि आपको? हर साल आई हैव टू गिव सम टाइम टू डिस्कस थिंग्स व्हिच क्रिएट बायसेस इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. आज एक पार्टी पावर में कर दूसरी होगी, उसके साथ आप मत झूलो. और ऐसा नहीं कि यहाँ पे कल आप एडमिनिस्ट्रेटिव बनोगे, कल चलिए क्या होगा. कई सारे लोग ये करते हैं कि मैं बीजेपी का फॉलोअर हूं, मैं कांग्रेस का हूं. जब पार्टी बदलती इनकी हालत खराब होती है, आपने देखा होगा कुछ. आपको आईएएस ऑफिसर बनना है कि फुटबॉल बनना है? सोचो एक बार, राइट. तो सिंसियर रिक्वेस्ट, ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मुझे ह्यूमन लाइफ का हर एस्पेक्ट डिस्कस करना पड़ता है जो सिग्निफिकेंट. तो मुझे गांधी की बात करनी पड़ेगी, मुझे सावरकर की बात करनी पड़ेगी, मुझे बोस की बात करनी पड़ेगी, मुझे नेहरू की बात करनी पड़ेगी. लेकिन आप अगर बायस लेके अंदर आ रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम्स होंगे. बट यस, अगर मुझे बायस कहीं पे दिखते हैं तो मैं उसको रिमूव करूंगा, बिकॉज दैट इज माय वर्क. एवरी स्टूडेंट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. So I'll make sure that I will talk about it. But it's good to not have biases. Right? Okay. So important personalities, अब सारे नाम जो मैंने लिए उनके ऊपर सवाल आ सकते हैं, राइट. या फिर इश्यूज. फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं लगता कि 18th 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया, वहां पे सती वॉज अ मेजर इशू जिसको विलियम बेंटिंग ने इलीगल किया. सो इंपॉर्टेंट इश्यूज, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, या फिर फेमिन्स
एट दैट टाइम, बहुत सारे फेमिन्स आए थे, राइट? इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, पीजेंट्स, सो इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज, ये फोकस है मॉडर्न हिस्ट्री में, राइट? फ्रीडम स्ट्रगल, फिर से वही बात है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बोलने के बाद फ्रीडम स्ट्रगल नहीं आता है क्या उसमें? तो अलग से क्यों लिखा है? अगेन एम्फेसिस. सो बोथ प्रीलिम एंड मेंस के सिलेबस वांट यू टू फोकस मोर ऑन फ्रीडम स्ट्रगल, राइट? अब इसमें वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स एंड contributions, right? So deliberately I talked about those personalities and events which do not come in the category of freedom struggle. उसके पहले आते हैं, मतलब टीपू सुल्तान है, पानीपत है, बाजीराव 1 या फिर 2 नहीं है 1, या फिर महाराजा रणजीत सिंह, ये सारे इस टाइम में आते हैं, राइट? पर्सनालिटीज आगे जाकर के अलग मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, रिवोल्यूशनरीज, गांधीयन फेज में जो लीडर्स थे, राइट? ये पर्सनालिटीज है, राइट? तो फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूशन. सो फॉर एग्जांपल मॉडरेट्स, देयर आर मेनी नेम्स, राइट? दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानडे, दिनशो वाचा, राइट? फिरोज शाह मेहता. तो ये कंट्रीब्यूटर्स हो गए. इनका कैरेक्टर कैसा था, इनकी क्वालिटीज क्या थे, इनके बिलीव्स क्या थे, उसका डिस्कशन करना पड़ेगा, उसके ऊपर सवाल आ सकता है. देन इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन, मेथड्स क्या थे. सिमिलरली लाल बाल पाल, अरविंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट फेज में, राइट? एंड देन देयर आर मेनी, गांधी, नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, राइट? ये सब कुछ. एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिवोल्यूशनरीज, राइट? चाफेकर ब्रदर्स से लेकर के सुभाष चंद्र बोस तक, isn't it? You know, and in between there are many. You talk about Lala Hardayar, right? Savarkar. You talk about Bhagat Singh, Sukhdev Rajguru, Chandrasekhar Azad, Surya Sen, right? So many contributors, their thinking, their beliefs, right, and their contribution. That is what we are supposed to study from various parts of the country. अगर मैं ये कहूँ कि रिवोल्यूशनरीज की बात अगर की जाए तो अभिनव भारत मित्र में कहाँ एस्टेब्लिश हुए थे? इन महाराष्ट्र, नासिक, राइट? एंड अनुशीलन समिति बंगाल में, युगंतर, अनुशीलन समिति बंगाल में. तो अलग अलग पार्ट्स में क्या हुआ ये भी हमको समझना पड़ेगा, राइट? ओके. पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस. सो दिस इज द सिलेबस दैट वी आर सपोज्ड टू डिस्कस. देयर इज ए सिलेबस फॉर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 18th सेंचुरी लिखा है यहाँ पे, मॉडर्न हिस्ट्री. तो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री. आप वर्ल्ड हिस्ट्री का एंशिएंट मटेरियल मत पढ़ो, देयर इज नो नीड. सिलेबस क्या बोल रहा है ठीक से पढ़ो, राइट? एंड दिस विल बी डेल्ट विद बाय जवाद काजी सर, राइट? ही विल टॉक अबाउट इलैबोरेटली ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट? नाउ सैंपल क्वेश्चंस. ये थोड़ा पुराना है, इट्स ओके, यू कैन टेक अप एनी एग्जांपल. पुराना मतलब इतना भी पुराना नहीं है, 2019 का है. इफ यू वांट आई विल टेक अप द क्वेश्चंस ऑफ recent examination as well. Okay. So these are, you know, the sample questions of preliminary examination. उसके बाद मेंस के. ये क्या किया मैंने पता है कि जो पेपर है ना उसका सीधा स्क्रीनशॉट निकाल के डाला है यहाँ पे, मतलब फील भी आता है कि हाँ ऐसे ऐसे दिखता है वो. बहुत लोग ना एग्जाम देख के देखना चाहते हैं. मुझे आज तक ये फंडा समझ में नहीं आया. देख के देखना क्या होता है? देख के पास करना होता है. दैट इज व्हाट आई बिलीव एटलीस्ट. और देखना है ना, ठीक है, एग्जाम जैसे खत्म होता है इमीडिएटली गूगल पे सर्च करो, पेपर मिल जाएगा. घर में बैठ के जितना देखना देखो उसको, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा देखना क्या होता है? यू आर वेस्टिंग एन अटेम्प्ट, राइट? वेरी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, है ना? देखो जितना देखना है यहाँ पे. लेकिन जब तक पढ़ाई नहीं होता, डोंट गो इनटू द क्लास एग्जामिनेशन हॉल. एनीवेज, अब यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है. ये शफल होता है हर सीरीज में, A B C D, and every year you would have different slots for different subjects. Look at this. Which of the following is not Harappan site बोला है? अच्छा, previous year question paper analysis जब करोगे, do not try to answer it. Why? पढ़ाई नहीं तो आंसर क्यों करना है? Did you really study that topic? No. तो फिर से वो मानस शास्त्रीय, साइकोलॉजिकल, डिप्रेशन आएगा. डोंट डू इट. पहले बोलो खुद को, आंसर देखना ही है. क्या करना है?
सवाल किस एरिया पे आए हैं, किस टाइप के सवाल है, राइट, ये देखना है। हाँ, तो यहाँ पे सवाल साइट मतलब एक बात तो क्लियर, हिस्टोरिकल साइट्स के ऊपर सवाल आ सकते हैं, राइट, नॉट एवरी साइट बट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट्स, ठीक है। सो देयर आर सम साइट्स गिवन हियर, राइट, बेस्ड ऑन विच यू डिसाइड कि कौन सा साइट हड़प्पन साइट नहीं है। और जब भी आप फिल्म का पेपर लोगे ना, तो आपको ये वर्ड दिखा ना, तो उसको अंडरलाइन करो, बॉक्स करो। होता क्या है, वी जनरली फॉरगेट दिस मेनी टाइम्स, इनकरेक्ट बोला है, करेक्ट बोला है, वी गो विद द माइंडसेट दैट मैं हर आंसर सही लिखूंगा, लेकिन आपको जो गलत है उसको चीज करने के लिए बोला है। So it's very much a psychological examination as well, और ये चेक किया जाता है हाउ अलर्ट दैट पर्सन इज। कल आप एज अ कलेक्टर, एज ए पुलिस कमिश्नर काम करोगे तो योर माइंड शुड बी अलर्ट, राइट। तो चेक, हर चीज चेक की जाती है यहाँ पे, है ना। ओके, दिस इज अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। हाँ, ये दो सवाल एंशिएंट हिस्ट्री के हैं। ये देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है। क्या स्टेटमेंट्स है? डेइफिकेशन ऑफ गौतम बुद्ध। डेइफिकेशन मतलब considering Gautam Buddha as God, deification, making somebody God, हमारा बड़ा ट्रेडिशन है उसका, अभी भी चल रहा है ना, ठीक है। सो गौतम बुद्ध का डेइफिकेशन, देन ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व एंड इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। ये तीन चीजें बताई हैं, और नीचे सवाल नीचे है अभी, which of the above is are the features of Mahayana Buddhism. So you have to study different religions: Hinduism, Jainism, Buddhism, right? Christianity, Islam, Sikhism, almost in that sequence. समझ में आ रहा है आपको, right? And I would be talking about each religion, its basic tenets. Tenets मतलब ideas, principles, and different aspects of it. And we would also talk about the criticism of it. क्योंकि यहाँ पे ठीक है, इस तरह से है। बाद में अगर आपको ऐसा कुछ सवाल आया जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन मांग रहा है, एग्जामिनेशन मांग रहा है, तो वहां पे आपको दोनों पॉइंट्स लिखने को आने चाहिए किसी भी रिलीजन की। आई एम टेलिंग यू, एवरी रिलीजन आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट, राइट, within 1-2 centuries becomes corrupt, and no religion is an exception. समझ में आ रहा है आपको? So most of the things that we believe as religion are corrupt elements. ठीक है। तो वही बात है, ओरिजिनल जो फिलोसफी था वो क्या था, बाद में चेंजेस क्या आए। सो अंडरस्टैंड द रिलीजन इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी इन द बिगिनिंग, देन फोकस ऑन रिलीजियस डेवलपमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली डेवलपमेंट के ऊपर है। गौतम बुद्ध ने क्या बोला था वो छोड़ दिया साइड में, और महायान बुद्धिज्म केम अप विद सम डिफरेंट आइडियाज। आर यू गेटिंग दिस? हाँ, सो रिलीजियस आइडियाज एक बात है एंड डेवलपमेंट दूसरी बात। देखो, मैंने आंसर नहीं दिया किसी भी क्वेश्चन का, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कैसे पढ़ना है हमको इन द लाइट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और ये तो मैं सैंपल क्वेश्चन लेके आया हूं, यू प्लीज डू दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। ये क्यों करना चाहिए पता है क्या? You can keep check on what is being discussed in the classroom, whether it is relevant, useful or not. ये आपके लिए है, आप नहीं करोगे ना ये, तो हमारा काम आसान होता है। कुछ भी जाके बोलो क्लासरूम में, एंटरटेन करो, लोग खुश, हम खुश, बात खत्म। ये नहीं होना चाहिए, राइट? यू आर हियर स्पेंडिंग 2 hours, एक तो इंडियन इंसान 2 घंटा बैठ के किसी को सुन रहा है, वो भी पैसे देके, डिफिकल्ट है, राइट? ये कर रहे हो ना, तो फिर कम से कम ये सोचो क्या मिल रहा है क्लासरूम में, राइट? आर यू गेटिंग एनीथिंग रेलेवेंट? ठीक है, विल दैट बी यूजफुल इन द एग्जामिनेशन? तो वो अगर आपको जानना है ना, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कल की बात, यू हैव टू रीड सिलेबस 3-4 टाइम्स, यू हैव टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑन योर ओन। खुद करते हो ना, तो वो उसका आइडिया आता है, किसने कैटेगराइजेशन करके दिया, इट मेक्स नो सेंस। So do this, it will really help you. Okay, so this is question on Buddhism. Medieval के 2 सवाल है, ठीक है। देखो, who among the following Mughal emperors, अब क्या पूछा? Emperors, लेकिन shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portrait, मतलब क्वेश्चन पेंटिंग के ऊपर है, लेकिन पूछा क्या है, कौन से बादशाह के समय वो शिफ्ट आया,
ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब बुक, हाँ, उसको पेंटिंग के फॉर्म में दिखाना, इससे पोर्ट्रेट मतलब किसी इंसान का पोर्ट्रेट, देयर इज समथिंग कॉल्ड रज्मनामा। दिस इज पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन ऑफ महाभारत। डू यू नो दिस? अकबर के टाइम पे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। सो ये हो गया इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब यू आर इलस्ट्रेटिंग स्टोरीज ऑफ अ बुक इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट का इलस्ट्रेशन। पोर्ट्रेट, ये शिप कहां आया, ये सवाल, आंसर छोड़ो, ये सारे आंसर आपको मिलेंगे नोट्स में, यू टॉक अबाउट दैट, राइट। बट बात ये है सवाल कैसे आ रहे हैं। तो आपको लगता है क्या कि मियरली नोइंग द फीचर्स ऑफ पेंटिंग ऑफ मुगल्स इज इनफ? नो, एसोसिएटेड पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना भी जरूरी है। अगर किसी कल्चर की बुक में ये भी है कि ये जहांगीर के समय हुआ, तो जहांगीर कौन, ये कहां से आया, और वो इंटरेस्टेड क्यों है, थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री पता होगा ना तो याद रखना आसान हो जाता है। एंड दैट इज व्हाई यू शुड नो लिटिल बिट ऑफ political, economic and social aspects, right, along with special emphasis on culture. Then is another question with reference to Mughal India. यहाँ पे शुरू नहीं होना है सर, ये सब एंटी नेशनल मुगलों के ऊपर सवाल पूछ रहे आते हैं। मैंने बोला ना बाहर रख के और क्लासरूम के, तो मार खाओगे इधर। मी स्पष्ट सांगतो, तो बाहेरचं फालतूपणा आणायचं नाही क्लासरूम मध्ये। एग्जाम पास करनी, कार्यकर्ता बनना है, पार्टी का कार्यकर्ता बनना है, तो डोर इज देयर। और एक कार्यकर्ता बन के क्या मिलता है आप थोड़ा देख लो। आईएएस बनोगे तो सारे कार्यकर्ता खड़े होंगे सामने। कार्यकर्ता छोड़ो, आप जानते हो ना प्राइम मिनिस्टर खुद जाता है आईएएस के पास फॉर्म भरने के लिए इलेक्शन। तो जो पाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसके लिए कुछ अलग एक पर्सनालिटी की जरूरत होती है। टू चेंज योर सेल्फ, इफ यू आर रॉ, वेरी गुड। रॉ मतलब नॉट अफेक्टेड बाय negativities, which is rare, but you are affected, you change yourself. नहीं तो मुश्किल है। या ऐसे नहीं हो सकता कि मैं वो मुगलों के खिलाफ गुस्सा लेके आऊंगा, सवाल आया ना मुझे गुस्सा आएगा, लेकिन छोड़ो कैसे कैसे लिखो, कैसे कैसे लिखोगे ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। और तो बहुत बोलने वाला मैं, रुको थोड़ा सा। जो हुआ है उसको हुआ है नहीं बोलोगे क्या? और ये सारे मिसकंसेप्शंस। टेल मी, फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया किसने किया? फर्स्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया, हाँ कौन? ओके, एनीथिंग एल्स? इसको कोई अपोज करने वाला है? होता है, हाँ। कुछ लोग सोच रहे हैं आज किसी बोल दिया यही क्या है, नो इमोशनल सेंटिमेंटलिज्म, नथिंग। हाँ ठीक है। हाँ, फर्स्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया बोलो। वैसे गलत आंसर है। यस। पोर्तुगीज कहां से आया? नहीं रे, वो बहुत बाद में। पोर्तुगीज ने जो और कुछ बोलना था। यू सेड हाँ तुर्किश पीपल, ओके। नहीं, साइरस, पर्शियन साइरस इज द आंसर। आर्यंस मत बोलो, उसका रीजन बताऊं क्या? देखो, यहां पे हमेशा एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। मैं जानता हूं that there are many people in India who think that Aryans invaded India, including Dr. B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar is like giant intellectual, right? B.R. Ambedkar, Periyar, Ramaswamy Naikar, है ना? ये जो thinkers है, काफी great thinkers है, no doubt about that, right? We are nobody to criticize them, but there are other thinkers, right, based on which we can criticize them. Nobody is above criticism, जानते हो क्या? और जब आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्रिटिसाइज करोगे ना, that is the biggest kind of tribute to him. नहीं समझे, है ना? बात यह है, डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, इफ देयर इज वन थ्रेट टू इंडिया दैट इज पर्सनालिटी कल्ट।
क्या बोला था उन्होंने? अगर कोई एक थ्रेट है इंडिया को, क्या है? पर्सनालिटी कल्ट। तो लोगों ने अंबेडकर का भी कल्ट शुरू किया है। ये उनके विचारों का डिफीट है। फिर से वही बात, जो बोला है वो छोड़ करके सब कुछ करो जो इजी है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को सही पॉइंट्स लेकर के उनके सामने कोई क्रिटिसाइज करता ना, ही वुड हैव अप्रिशिएटेड दैट बिकॉज़ ही वाज एन इंटेलेक्चुअल। और इंटेलेक्चुअल इंसान हमेशा ओपन टू आइडियाज होता है। एंड डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैड अ ग्रेट डिबेट विद गांधी, एंड फॉर दैट ही डिड नॉट हेट गांधी। यूट्यूब लेकर के आप आओगे ना यहाँ पे, छोड़ूंगा नहीं तुम, और मेरे पास एविडेंसेस है। मैं एक भी बात हवा में नहीं करूंगा यहां। आप पूछो, एविडेंस में लेके आऊंगा। ये दोनों अखबारों में लिखते थे, पता है क्या? गांधी और अंबेडकर, राइट? तो उन्होंने उस समय जो अखबारों में लिखा है ना, वो कॉपीज है अभी भी कई सारे यूनिवर्सिटीज में। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से मैंने दोनों के आर्टिकल्स डाउनलोड करके रखे हैं, ओरिजिनल राइटिंग। हाँ, मैं आपको बताता हूं अंबेडकर ने क्या बोला। मैं अपनी मन की बात करने लगा, इट मेक्स नो सेंस। अंबेडकर ने जो लिखा है सीधा दिखाऊंगा मैं आपको, गांधी ने जो लिखा है सीधा दिखाऊंगा मैं आपको। डायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट नहीं। आजकल आवाज का डबिंग करके लोग कुछ भी वीडियोस बना रहे हैं। अंबेडकर ने गांधी को महात्मा बोलने से मना किया था, सफेद झूठ। उनके आर्टिकल में हर जगह पे महात्मा वर्ड है व्हाइल एड्रेसिंग गांधी। दिखाता हूं मैं आपको। सो प्लीज बच के रहो। देयर आर मेनी होपलेस थिंग्स गोइंग ऑन व्हाट इज कॉल्ड सोशल मीडिया। इसलिए मैं कल बोल रहा था, इंटरनेट का यूज जुडिशियस, पता होना चाहिए क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आपको पता है क्या, वॉट एवर आई एम स्पीकिंग हियर, मेरा वीडियो किसी को मिल जाए तो आप मेरे मुंह में कोई भी सेंटेंस डाल सकते हो। उस तरह का एआई बन चुका है। तो यू कैन नॉट बिलीव एवरी सोर्स। यू हैव टू बी केयरफुल। अंबेडकर का आवाज आ रहा है मतलब, आपको पता है वॉइस मॉड्यूलेशन कैन बी चेंज्ड। डॉक्टर वीडियो बोलते हैं उसको। सो प्लीज डू नॉट गो बाय व्हाट यू सी इन सोशल मीडिया। एक अलग डोमेन है जहां पे हम बात कर रहे हैं, राइट? सो मुगल इंडिया जब बोला जाता है, मुगलों का वो काल, राइट? टाइम पीरियड ऑफ मुगल्स, राइट? ओके, तो वहां पे कई सारी चीजें हुई हैं, राइट, विच हैव बीन ए कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। रही बात इन्वेजन की, साइरस इन्वेडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, देन अलेक्जेंडर। आर्यन इन्वेजन में एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पेरियार ने तो मतलब, पेरियार वाज द वन हु पॉपुलराइज्ड दिस आइडिया। आर्यन लोगों का इन्वेजन नहीं, माइग्रेशन था। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेजन एंड माइग्रेशन। मुगलों का इन्वेजन नहीं था, इट वाज माइग्रेशन। पढ़ता है का बगा। जब मैं ये बोलता हूं कि आर्यन इन्वेजन नहीं था, माइग्रेशन था, यू आर हैप्पी। देखो सर, इन्वेजन नहीं था, है ना? जब मुगलों का भी माइग्रेशन हुआ था, क्या बात करो, ये मत करो। हाँ, डोंट डू दिस। क्या है, बाहर से कोई आता है, and that person, that community becomes part of Indian society, that is called migration. इन्वेजन कौन सा है फिर? साइरस इन्वेड करके था, वापस जाता था। और पर्शियन मतलब मुसलमान नहीं है, he was Zoroastrian, पारसी। इस्लाम तो 7th सेंचुरी में आया, फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI। ठीक है, तो पर्शियन साइरस का इन्वेजन, उसके बाद अलेक्जेंडर का इन्वेजन, ग्रीक रे, पुर्तगीज नहीं, ग्रीक इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, वापस चला गया अलेक्जेंडर, यहां पे नहीं रुका, राइट? एंड देयर आर मेनी अदर इन्वेजन्स दैट वी टॉक अबाउट, यू कैन गो ऑन टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? कई सारे इन्वेजन्स हुए। खून इन्वेजन हुआ था, बाद में वो माइग्रेट कर गए, दोनों है उनके। देन यू टॉक अबाउट गजनी एंड घुरी, इनके इन्वेजन्स थे, वो माइग्रेट नहीं हुए, राइट? यू टॉक अबाउट दिल्ली सल्तनत, वो माइग्रेशन था, राइट? जब दिल्ली सल्तनत यहां पे दिल्ली में एस्टेब्लिश हुआ तो कई सारे मंगोल, तुर्किश इन्वेजन हुए हैं, तुर्को मंगल इन्वेजन्स। मतलब इन्वेडर मुस्लिम है, इंडिया का डिफेंडर मुस्लिम है। ऐसे बताया नहीं जाता हमको, कुछ और बताया जाता है। जब मुगल्स एम्पायर बना तो तब भी इन्वेजन्स थे, और 18th सेंचुरी में मराठा एम्पायर बना तब भी इन्वेजन्स थे।
अब्दाली तक यू कैन टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, राइट? अहमद शाह अब्दाली। सो इन्वेजन अलग है, माइग्रेशन अलग है, ठीक है। एनीवेज, तो मुगल्स के ऊपर काफी सवाल आ चुके हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड मुझे ये समझ नहीं आता कि व्हाई दिस इज हेटेड फॉर मुगल्स, राइट? देखो, सबसे ज्यादा डैमेज किसने किया इंडिया को, पता है क्या आपको? इतना बोल के मैं आगे चला जाता हूँ, बायस नहीं होनी चाहिए इसलिए बता। सबसे ज्यादा डैमेज किसने किया? ब्रिटिशों ने। दे लूटेड अस लाइक एनीथिंग, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। वी वर रिड्यूस्ड टू बेगरी। A very prosperous India was reduced to beggary. मुगल एम्पायर तक इंडिया वाज लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। जब ब्रिटिश रूल शुरू हुआ, एवरीथिंग फिनिश्ड। तो गुस्सा आना चाहिए तो किसी के खिलाफ आना चाहिए। वैसे गुस्सा किसी के खिलाफ नहीं आना चाहिए, ऐसे हिंदुइज्म बोलता है। प्रवचन नहीं शुरू करना है मुझे, वो भी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर गुस्सा आना चाहिए तो इसके खिलाफ आना चाहिए। एक तो ब्रिटिश नेवर बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। वो आए, उन्होंने लूटा, वो चले गए। मुगल्स बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। Whatever revenue they raised here, they spent here. And by the way, Jahangir was a son to Hindu mother, and so was Shah Jahan. ये तो मुझे थमा थोड़ा। That's why I'm saying कि जो बाहर गलत चीजें बताई जाती है, do not be victim of it. हाँ, ओके। और हिस्ट्री कभी इतना नहीं बदला जाएगा। आप सोच रहे हो कि सर अब बीजेपी है ना पावर में, हम चेंज कर लेंगे। क्या चेंज करोगे कि मुगल थे ही नहीं, ताजमहल है ही नहीं। सो प्लीज डोंट डू इट। अब यहाँ पे जहागीरदार, राइट, एंड जमींदार का डिफरेंस के बारे में दो सेंटेंसेस है, और ये दो अलग कॉन्सेप्ट्स है। जहागीरदारी इज डिफरेंट एंड जमींदारी। अभी क्लियरली दिस इज ए क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस। तो कल्चर बोला यूपीएससी ने, लेकिन फोकस अलग चीजों के ऊपर भी है। दैट्स व्हाई आई सेड कि थोड़ा बेयर मिनिमम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एस्पेक्ट पता होना चाहिए। ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एनालाइज कैसे करना है? मैंने वो सेंटेंस पढ़ा भी नहीं। पढ़ने के बाद क्या करना है आपको? वो चीज निकालनी है जिसके ऊपर सवाल है। डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। आई डोंट नो इट, चलो, बिकॉज वी आर द बिगिनर्स, राइट? तो ये तो पता चलेगा कि हाँ, इसको पढ़ना पड़ेगा आगे जाकर। समझ में आ रहा है आपको? That is previous year question paper analysis. It is not about answering it. It is not about merely taking out how many questions came on what topic. It has to go beyond it. Analyze करो उसको। मॉडर्न के दो क्वेश्चन लिए मैंने, देखो। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, जहां पे मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन और लीडर है। तो सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट लीडर्स, देयर वर्क, कंट्रीब्यूशन, ये उस टाइप का सवाल है। देन यू लुक एट दिस स्वदेशी मूवमेंट, वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट? उसके बारे में स्टेटमेंट दे, पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। सो लुक एट द एरियाज, जो सिलेबस में है उसी के ऊपर सवाल है वैसे देखा जाए। सो इफ यू रीड सिलेबस केयरफुली with its expanded meaning, which I'm trying to do right now, trying to explain it, you are really good to go in terms of answering these questions. Okay. Mains examination के सवाल। ये थोड़ा पुराना पीपीटी है। If you want, I can bring, हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में we would talk about what the latest examination. ऐसा कुछ नहीं कि वो कर नहीं सकते, अभी टाइम नहीं है इसलिए मिला, तो I would talk about that as well. देखो, सैंपल क्वेश्चंस है। हाईलाइट scintillation Greco-Bactrian elements in Gandhar art. क्लियरली आर्ट के ऊपर सवाल है, राइट? गांधार में ये ग्रीक कहां से आया? यहाँ पे ग्रीको बैक्ट्रियन लिखा है, बाद में ग्रीको रोमन भी लिख सकते हैं। रोमन ग्रीक इन्फ्लुएंस कहां से आया? आप सीधा रट्टा मारोगे ना, इट मेक्स नो सेंस। आपने क्या करना है बताया कि व्हाट यू सपोज टू इज यू अंडरस्टैंड अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, and you understand that Alexander went back but many Greeks stayed back. काफी सारे ग्रीक्स यहाँ पे रह गए। बैक्ट्रिया नाम का रीजन है which is roughly अफगानिस्तान today, right? So अफगानिस्तान ईरान का पार्ट, पाकिस्तान के उधर बैक्ट्रिया पर्थिया नाम के दो रीजन्स पुराने समय ये नाम थे। तो ग्रीको बैक्ट्रियन मतलब
वो ग्रीक जो बैक्ट्रिया में रुके थे अलेक्जेंडर के वापस जाने के लिए, उनको बाद में इंडो ग्रीक्स भी बोला जाता है क्योंकि वो इंडिया में शिफ्ट हो गए। तो उनका एक इन्फ्लुएंस है, दे कैरिड यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्कल्पचरल एलिमेंट्स विद देम, और उसका एक इन्फ्लुएंस गांधार आर्ट में देखने को मिला। तो एलिमेंट्स कौन से, वो सब कुछ है नोट्स में, डोंट वरी। बात यह है थोड़ा सा एसोसिएटेड पॉलिटिकल सोशल हिस्ट्री जानोगे तो ये सब कुछ पढ़ाई करना इसका आसान हो जाता है, बर्डन नहीं होता। क्या क्या रट्टा मारोगे, 5000 साल का हिस्ट्री, इनफैक्ट 5 लाख साल का, डरने की बात नहीं है। वो 5 लाख में से ना 4,95,000 उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जो भी वो 5,000, वो 5,000 बहुत बड़ा है, इट्स क्वाइट लार्ज चंक ऑफ इंफॉर्मेशन, बट उसको याद रखने के लिए यू कैन हैव नंबर ऑफ थिंग्स, राइट, which will help you remember these things। मैं उसकी बात करता हूं while discussing history, don't worry। तो एलिमेंट्स हाईलाइट करने हैं आपको, ग्रीको बैक्ट्रियल एलिमेंट्स। देन एग्जामिन बोला है आप यहाँ पे, एग्जामिन लिंकेजेस बिटवीन 19th century's Indian Renaissance and the emergence of national identity। समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर आप इस लाइन पे सोच रहे हो, इंडिया का जो नेशनल आइडेंटिटी है उसका इमर्जेंस एंड उसका लिंक इंडियन रिनाइसेंस के साथ, रिनाइसेंस मतलब पुनर्जागरण बोलते हैं ना, रिनाइसेंस देन एनलाइटनमेंट, राइट। अब आप बोलोगे इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी बोल रहे हो, ये मत बोलना इधर बैठ के, नेशनल आइडेंटिटी इमर्ज, प्राचीन काल से हम राष्ट्र हैं। हेलो, कंट्रोल योरसेल्फ, पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं हो, तुम्हारा करते करे, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी पार्टी को टारगेट करने में। क्या मकसद हो सकता है मेरा, और मैं कुछ करके भी क्या होने वाला है? आई हैव नो इंटरेस्ट एट ऑल। बात ये, सवाल क्या है, और अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा दैट इज काइंड ऑफ डिसीट, फंसा रहा हूं मैं आपको, मिसलीड कर रहा हूं। तो मुझे आपको अवेयर करना पड़ेगा, जो सवाल आते हैं उसको पढ़ो ठीक से, राइट, एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर। कोई पर्सनल एजेंडा कैसे हो सकता है? आप पकड़ो, फिर मुझे पूछो कि आप पर्सनल एजेंडा बोल रहे हो, आई एक्सेप्ट इट, अगर वो सही है, नहीं है तो आई एक्सप्लेन इट। इस बात को समझो कि इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कब हुआ? सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया में। जब नेशनल आइडेंटिटी बनी तो एक बनी क्या? नहीं, ये भी गलत कंसेप्शन है हमारा। अगर एक बनी होती तो पार्टीशन क्यों होता? राइट, पार्टीशन की वजह से 2 बने थे, ये पता चला, लेकिन ऐसा भी नहीं, मल्टीपल थे। मतलब आइडिया ऑफ नेशनल आइडेंटिटी ऑफ द मॉडरेट्स वाज डिफरेंट। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का अलग था, और हर एक्सट्रीमिस्ट लीडर का अलग था। गांधी का आइडिया अलग था, सावरकर का आइडिया अलग था, नेहरू का आइडिया अलग था, आर यू गेटिंग दिस, बोस का आइडिया अलग था। और इन सब का कहीं ना कहीं एक पीछे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के साथ एक लिंक है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो यू हैव टू टॉक अबाउट एटलीस्ट मेजर नेशनल आइडेंटिटी के आइडियाज एंड लिंक दैट टू दी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड डू इट, डोंट वरी, इन द क्लासरूम। ये पहले से करते हैं, ऐसा नहीं कि सवाल है फिर शुरू किए, वी डू इट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज वो ऐसे ही हुआ है। 57 का अपराइजिंग was culmination of recurrent big small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule। कंपनी रूल में कई सारे रिवोल्ट्स है, और बाद में एक बड़ा रिवोल्ट है, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। ग्रोवर का बुक जो है उसमें क्लियरली पूरे 100 इयर्स के जितने भी रिवोल्ट्स है उसका लिस्ट दिया है, एक डेडिकेटेड चैप्टर है उसके लिए। तो वो पढ़ोगे तो यू कैन इजीली आंसर। ये बहुत सिंपल सवाल था, राइट। ये थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो इसीलिए मैं जो रेफरेंस बुक बोलूंगा ना, ये सब दिमाग में रख के होगा, राइट, कि क्या सवाल आए हैं और कहां से आपको उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट। मेनी वॉइसेस हैड स्ट्रेंथन्ड, एनरिच्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग गांधीयन फेज। गांधीयन फेज क्यों सर? बाकी लोग भी थे, हम गांधीयन नहीं बोलेंगे। यूपीएससी को बोलो जाके, मुझे नहीं। किसको बोलो? यूपीएससी। तुम्हारा कळते जा रहे, आर यू गेटिंग दिस? आप अननेसेसरली कुछ सेंटिमेंटल टॉपिक्स दिमाग में लेके आते हो, मत लेके आओ। मैं तब तक कहूंगा जब तक आपके सेंटिमेंट्स मुझे दिखेंगे कि हाँ नहीं है ना। तो गांधीयन फेज है वो, बिकॉज ये जो पर्सन है गांधी नाम का, इंडिया छोड़ो, ही इज डिक्लेयर्ड एज मैन ऑफ मिलेनियम।
बाय द वर्ल्ड, सहस्त्रकातला सर्वोत्तम व्यक्ती, जगाने मान्य केले. तुम्ही जर मान्य नाही केलं ना तर तुम्ही खाली पडताय, गांधी नहीं. अच्छा, इसका मतलब ये है क्या वी कैनॉट क्रिटिसाइज गांधी? नो, नोबडी इज अबाउट क्रिटिसिज्म. बट जब क्रिटिसाइज करोगे सही तरीके से, सही पॉइंट्स के ऊपर, बिलो बेल्ट नहीं, कैरेक्टर असोसिनेशन नहीं. गांधी मेथड्स, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका क्रिटिसिज्म क्या है. गांधी पॉलिसीज, गांधी आइडियाज, कंट्रीब्यूशन क्या है, क्रिटिसिज्म क्या. सेम इज द केस विद एवरीबॉडी एल्स. सावरकर के आइडियाज, कंट्रीब्यूशन क्या है, क्रिटिसिज्म क्या. किसी भी एंड पे नहीं जाना. तो प्लीज बच के रहो इन सब चीजों से. तो गांधीयन फेथ में कई सारे कंट्रीब्यूशंस थे. गांधीयन फेथ शुरू होता है 1920 से 47 तक. तो कितने थ्रेड्स है उसमें. गांधी का खुद का थ्रेड है, राइट. स्वराज पार्टी के लोग हैं जो थोड़ा अलग थॉट लेके आए थे. रिवोल्यूशनरीज हैं, राइट, उसमें भी अलग अलग थ्रेड्स हैं रिवोल्यूशनरीज में. देन यू टॉक अबाउट पीजेंट मूवमेंट्स, वर्कर्स मूवमेंट्स, विमेन्स एसोसिएशन, इजंट इट. बोस का थिंकिंग अलग था. ही वेंट आउट ऑफ कांग्रेस, राइट, एंड ही हैड डिफरेंट एफर्ट आईएनए के फॉर्म में. देयर आर मेनी. मुस्लिम लीग का अपना एक अलग थ्रेड है, हिंदू महासभा का अलग थ्रेड है, which are communal organizations clearly. So there are different threads we are supposed to study in Gandhian phase, not just Gandhi. There are others as well. तो सभी ने कहीं ना कहीं contribute किया है, strengthen किया है nationalist movement को. ये आपको लिखना है. So if you know the entire history of those 2 decades, you can easily write this answer. अब क्या बोला है? Assess. You also please pay attention to the keyword, हाँ. Examine, elaborate, assess. Examine करना है मतलब आपको दोनों चीजें बतानी है, राइट. ये लिंक बताना है आपको, ठीक है, किसका कौन सा लिंक, ठीक से, हाँ. और वो इलेबोरेट करना है मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन इट, हाँ, राइट, इन डिटेल. असेस करना है, असेसमेंट, इवैल्यूएशन देना है आपको. किस चीज का असेसमेंट पूछ रहा है सवाल? रोल ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल पावर इन कॉम्प्लिकेटिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर. अगेन सेंटिमेंटल मत होना यहां पे. हमने इंडिपेंडेंस जीता था सर, ये क्या है? नो सेंटिमेंटलिज्म, ठीक है. टेक्निकली स्पीकिंग इट वाज ट्रांसफर. टेक्निकली स्पीकिंग, yes, there is no doubt about that. We have won our independence, right? We value that freedom struggle. भीख में नहीं मिला था, स्ट्रगल करना पड़ा था. आजकल कुछ भी होपलेस लोग कुछ भी बोल रहे हैं ना. मैं समझाता हूं कभी आपको बैठ के कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है, और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बोलता हूं. नॉन कोऑपरेशन वाज प्रैक्टिस बाय एक्सट्रीमिस्ट एंड इवन बाय गांधी. एक्सट्रीमिस्ट कौन? लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष. तो ये भीख मांग रहे थे. अब जब बात करते हो ना, मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए इंसान ने, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं. इन लोगों ने शस्त्र नहीं लिए थे हाथ में, जानते हो क्या? लेकिन और भी स्ट्रगल हो सकते हैं दुनिया में, और भी तरीके हो सकते हैं. आपको तरीके समझ में नहीं आ रहे, इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे बैठ के. इट वॉज अ स्ट्रगल. मेनी पीपल हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स. और लाइफ का सैक्रिफाइस मतलब ये मत समझना कि फांसी पे चढ़ जाना, वो भी सैक्रिफाइस है लाइफ का. और लोकमान्य तिलक ने पूरा लाइफ सैक्रिफाइस किया है, लाला लाजपत राय ने, और बहुत सारे लोगों ने. इनको फांसी नहीं हुई, लेकिन अपने करियर छोड़ के, वो इंटेलेक्चुअल्स थे बाय द वे, बहुत अच्छे करियर बन सकते थे. उनको कुछ नहीं मिला जिसको आप अच्छे, ये बोलते हैं पर्सनल अचीवमेंट, बट दे पुट इन द एफर्ट्स. यू कैन नॉट इंसल्ट इट. तो मूर्खों की भाषा यहां नहीं चलेगी, हम टेलिंग. इसलिए मैं कब से बोल रहा हूं आपको कि बच के रहो बाहर जो चल रहा है. इधर वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए स्लाइटली भी, ठीक है. तो इट वॉज अ स्ट्रगल, आई नो इट. वी हैव मेड लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, बट टेक्निकली स्पीकिंग Indian independence was granted by passing a bill in the British Parliament. समझ में आ रहा है आपको? That is what is called transfer of power. Negotiations हुए थे, talks हुए थे. Complicate क्यों हुआ? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के डिफरेंसेस, राइट. तो जो डिफरेंसेस थे, अंग्रेजों ने उसको कॉम्प्लिकेट किया क्या, बढ़ाया क्या, उसका असेसमेंट देना है. क्या देना है? असेसमेंट, ठीक है. अभी तक हमने वो देखा नहीं, तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट. देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ इट, विल टॉक अबाउट इट लेटर. तो एग्जैक्ट असेसमेंट किया था, कंट्रीब्यूशन था तो कितना, अगर नहीं किया तो वो क्या है एग्जैक्ट एविडेंस के साथ.
So that is what you are supposed to talk about. आपको समझ में आया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है. Questions make you think, they make you reflect on it, right? तो कुछ इवेंट हुआ है वो डिस्क्राइब करो, ऐसे नहीं है क्वेश्चंस. और इसीलिए जब पढ़ोगे तो एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन, राइट, एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है. मियरली ये बताना कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है, ये हुआ था, बात खत्म, चलो आगे. You have to talk about different aspects of it. What kind of impact it had, consequences, contribution, right? ये मैं कल बात कर चुका हूं. Let us not repeat it. ये सैंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है. किस एरिया पे सवाल आया है, राइट, क्या पूछा गया है और सवाल क्या है, कमेंट है, एक्सप्लेन है, इलस्ट्रेट है, असेस है. ओके, नाउ ये जो सवाल मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. थोड़ा रुक जाओ. ये मैं पहले बोल चुका हूं, ठीक है. लेट्स गो थ्रू क्विकली. मैंने क्या कहा आपको, discussion on the outline of history, this is new point, but here I have talked about focus on cultural aspect as far as ancient medieval is concerned. हिस्ट्री को पढ़ने से पहले आपको ये करना पड़ेगा, आउटलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज व्हेन यू हैव आउटलाइन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, यू नो द स्कोप, क्या पढ़ना है और वो कितना स्कोप है उसका, एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली प्लान योर स्टडी. समझ में आ रहा है आपको? और एक अंदाजा आ जाता है कि हाँ ये सब कुछ है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी आउटलाइन. दूसरी बात, आउटलाइन टेल्स अस हिस्टोरिकल इवोल्यूशन process, and many a times that is very useful in understanding questions as well. ये जो सवाल आया था 2014 में, कई सारे लोगों को समझ में ही नहीं आया. आंसर देना दूर की बात. क्यों समझ में नहीं आया? देखो, तक्षशिला यूनिवर्सिटी was one of the oldest universities of the world with which were associated a number of renowned learned personalities, right, of different disciplines. Its strategic location caused its fame to flourish. यहां तक सवाल शुरू ही नहीं हुआ, वो बस एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है, कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर रहा है. सवाल के दो पार्ट्स हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट होता है एंड देन देयर इज द क्वेश्चन. आपको आंसर क्या करना है? बहुत सारे लोग कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करने में लग जाते हैं एंड यू डोंट गेट मार्क्स. ठीक है, आपको अगर ये 10 मार्क के लिए पूछा है तो आपने क्या करना है? आपने इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना है, उसके बाद आंसर करना है क्वेश्चन. मैं नहीं कह रहा कि कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दो. कॉन्टेक्स्ट शुड ऑक्युपाई एट द मोस्ट 10%, 20% ऑफ द आंसर. रेस्ट 80% शुड बी द कोर आंसर. समझ में आया आपको? अब सवाल शुरू होता है. बट अनलाइक नालंदा, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सिटी इन मॉडर्न सेंस. डिस्कस. तो रियल डिस्कशन क्या होना चाहिए कि हाउ नालंदा कुड बी कंसिडर्ड एज मॉडर्न एज कंपेयर टू तक्षशिला, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मेनी लर्निंग पर्संस वेर एसोसिएटेड विद तक्षशिला. आर यू गेटिंग दिस? ये सवाल आंसर करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नो तक्षशिला का टाइम पीरियड पुराना था, और जब तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी एट दैट टाइम मोस्टली एजुकेशन वाज रिलीजियस एजुकेशन. मोस्टली a few subjects like logic for example were discussed, grammar for example, right? But तक्षशिला का जब टाइम पीरियड ऑलमोस्ट खत्म होता है एंड देन नालंदा का शुरू होता है, उसके पहले जिसको आप पोस्ट मौर्य पीरियड बोलोगे, वहां पे यू सी लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स हैपनिंग. लाइक फॉर एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, चरक केम अप विद चरक संहिता, शुश्रुत केम अप विद शुश्रुत संहिता, राइट? देयर आर बुक्स ऑन वेटरनरी साइंस, देयर आर बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री. मतलब जो मॉडर्न करिकुलम है ना, उस तरह का डेवलपमेंट कब हुआ? पोस्ट मौर्य पीरियड में. तक्षशिला तो उसके पहले से है, तो आप उसको मॉडर्न कैसे कंसीडर कर सकते हो? तो बिगिनिंग था. और भी पॉइंट्स आएंगे, नो डाउट अबाउट दैट, बट एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फ्लो ऑफ हिस्ट्री, वो अगर नहीं पता है ना, तो आप इसको समझ भी नहीं पाओगे. आंसर करना दूर की बात. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो कल्चर बंडल में फेंकना बहुत गलत है. हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पता नहीं है ना, आप उन बुक से प्रीलिम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एट द मोस्ट, बट नॉट इन मेंस. बट डोंट वरी, द नोट्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड आर बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन. मैं दिखाता हूं आपको, डोंट वरी. एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री फोकस ऑन कल्चरल एस्पेक्ट्स with fairly good idea of political, administrative, social and
इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, क्योंकि सवाल उसके ऊपर आए हैं, हमने देखा है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है? वही क्वेश्चन है जो मैंने शॉर्ट किया था उधर। देखो इतना बड़ा सवाल है, वो यहाँ शुरू होते हैं यहाँ पे खत्म होते। क्या लिखा है देखो, दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, संगम लिटरेचर पोर्ट्रेज social economic conditions of its time with remarkable vividness. Comment. क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे सवाल संगम लिटरेचर के ऊपर है, तो मैं बुक्स का नाम लिख के आता हूं, ये चलेगा? नहीं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू एक्सप्लेन ऐसा है क्या। अगर नहीं तो भी बोलो, कमेंट बोला है, राइट? पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा कंटेंट है कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर? एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ज्यादा मिलते हैं उन बुक से, राइट? इनफैक्ट साउथ में पांड्य किंगडम था, राइट? पांड्य किंगडम के अंडर संगम लिटरेचर लिखा गया, तो पैट्रोनेज जिसको बोलते हैं ना, आश्रय, वो पांड्य किंगडम का था। तो मेजरली पांड्य किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन है, चोला चेरास के बारे में कनेक्टेड है, पूरा नहीं है। तो वैसे भी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन इज एज कंपेयर टू सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस लेस, राइट? सो क्लियरली सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुए हैं। और तो कुछ एक बुक के नाम एक आध दूसरे, और वो कंडीशंस क्या थे ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? मैंने बस ये कीवर्ड्स उठाए इसमें से, संगम लिटरेचर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, कमेंट। गॉट दिस पॉइंट? ओके, यहां पे क्या करोगे? तक्षशिला एंड नालंदा, इतना ही, मेक इट वेरी शॉर्ट। तक्षशिला एंड नालंदा कंपैरिजन डिस्कस, मेक इट शॉर्ट, राइट? है ना? Now, modern history, equal emphasis on all aspects of modern history, political, social, economic, culture. यहाँ पे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? Okay, now sources for the study of Indian history. क्या sources है? देखो, अब यहाँ पे एनसीईआरटी का डिस्कस, कल बहुत लोग मुझे एनसीईआरटी के बारे में पूछ रहे थे, आई वुड टॉक अबाउट दैट हियर। देखो, बहुत बार आपने सुना होगा कि हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो। डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओल्ड एनसीईआरटीज आर रिटन सीक्वेंशियली। न्यू एनसीईआरटीज में सीक्वेंस बहुत शॉर्ट में दिया है, प्लस थीम बेस्ड है। थीम बेस्ड कौन पढ़ सकता है पता है क्या? जिसको ऑलरेडी सीक्वेंस पता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो पहले आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो फॉर हिस्ट्री, ओल्ड एनसीईआरटी। समझ में आ रहा है? तो आपको सीक्वेंशियली पता चलेगा व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, राइट? एंड देन यू गो फॉर न्यू एनसीईआरटी। तो दो रीडिंग वैसे भी करने पड़ते, सो दिस इज गुड इनफ आइडिया, राइट? मेनी पीपल टॉक अबाउट तमिलनाडु एनसीईआरटीज, राइट? Tamil Nadu NCERTs have focus on South India. I fully understand that the culture of South India is also part of a syllabus, right? But उसको आप as a additional reading करना है तो रख सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? But not as a primary source. That could be additional source. So this is for basic. Then modern Indian history by B.L. Grover. India's struggle for independence by Bipin Chandra. ये दो बुक क्यों और वो कैसे पढ़ने? ग्रोवर टेल्स यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1707 टू 1947, या फिर इनफैक्ट 1964, नेहरूवियन पीरियड भी ऐड किया उसमें। बट यू वुड रीड ग्रोवर फ्रॉम 1707 टू 1857, प्रिसाइजली दैट पार्ट विच इज नॉट देयर इन बिपिन चंद्र। एक कहते करे, ये मैं दूसरा बुक इसलिए बता रहा हूं बिकॉज बिपिन चंद्र स्टार्ट्स विद 1857। तो यहां से आप 1857 से बिपिन चंद्र पढ़ो ऑनवर्ड्स। आर यू गेटिंग दिस? सो सिलेबस की जो पार्ट्स है उसको कवर करने के लिए मैं आपको बस एक एक बुक बता रहा हूं। वन बुक फॉर इनिशियल 100 years, अदर बुक फॉर नेक्स्ट 90 years, राइट? बेसिक है, मैंने एडिशनल कुछ भी नहीं बोला, बेसिक मिनिमम। ओके, ये होने के बाद एडिशनल कुछ भी पढ़ो जो भी आपको बोला था कि अच्छा बुक है, वो अच्छा बुक है, यू कैन डू दैट, बट यू फर्स्ट रीड एटलीस्ट बेसिक बुक्स। देन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र। यस, आई फुल्ली अंडरस्टैंड दैट यू नो ये जो बुक है काफी बड़ा है,
और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पे काफी सारे सवाल नहीं आते, बहुत कम आते हैं। अगर टाइम क्रंच है, यू यूज क्लास नोट्स, समझ में आ रहा है? लेकिन जब वो खत्म होता है तो कम से कम एक बार उन टॉपिक्स को देख लो जिसमें आपको लगता है कि नोट्स में उतना इंफॉर्मेशन नहीं मिली। आर यू गेटिंग दिस? सो मेक कॉम्बिनेशन, सिलेक्टिव रीडिंग कम से कम कर, इफ नॉट एंटायर बुक। कल्चर के लिए बंडल्स में फेंकने वाले जो बुक्स हैं कल्चर को ये दो है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर दिस वन, यस बनिया, ही टीचर्स हिस्ट्री इन दिल्ली, बट ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का बुक है। ये इसलिए बिकॉज इट्स अ गुड कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में आता है आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स, लेकिन द नोट्स दैट आई वुड शेयर उसमें फ्लो होगा, तो उसमें कुछ एडिशनल मिलता है तो ऐड करो। सो ओनली टू सोर्सेस, क्लास स्टडी मटेरियल एंड ये बुक, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा कुछ भी मत करो। प्राइमरी क्लास स्टडी मटेरियल रखो, उसके बाद उधर देखो एडिशनल कुछ मिलता है ऐड करो, ठीक है, ओके। सो क्लास स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स मटेरियल हिस्ट्री में 1-2% होता है, जैसे कि मैंने कल डोलावेरा का एग्जांपल बताया था आपको। एनीथिंग दैट कम्स इन करंट अफेयर्स रिगार्डिंग हिस्ट्री। आई विल शो यू क्लास स्टडी मटेरियल, ठीक है, मैं दिखा देता हूं सो दैट एटलीस्ट यू हैव सम आइडिया। सो इफ यू प्रेफर एंशिएंट, ये पीपीटी में जो कंटेंट है ना उसका बुकलेट बना रहे हैं हम, राइट? एक ऑलरेडी है मॉडर्न का, ये बन रहा है तो आपको मिल जाएगा इमीडिएट। सो you have all the relevant details, मैं इसलिए दिखा रहा हूं because you don't need to worry about the art and culture stuff, you just make additions, right, with photos and pictures, ये सब मिलेगा आपको, अलग अलग sites and all that, है ना? So मेसोलिथिक आर्ट के ऊपर सवाल आया था, उसके सारे पॉइंट्स है इसमें, मेसोलिथिक आर्ट, राइट, है ना? सो डोंट वरी, इसका भी प्रिंट मिलेगा आपको और ये मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम के ऊपर जो लोग ऑनलाइन के लिए है, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज। अलग अलग कल्चर्स जो है स्टोन एज में, ठीक है। सो यू वुड गेट एवरीथिंग, सो डोंट वरी एट ऑल अबाउट इट। उसके बाद यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मॉडर्न, सो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से लेकर इंडिपेंडेंस तक, राइट? सो ऑल द इंपॉर्टेंट लेटर मुगल एम्परर्स एंड उनके अंडर क्या क्या हुआ, 18th सेंचुरी के सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट दिस इवेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रीजनल स्टेट्स, ठीक है, रीजनल पावर्स, उसमें अलग अलग स्टेट्स है, मराठास, मैसूर, राजपूत, जाट, सिख, अवध, बंगाल, डेक्कन, हैदराबाद, निजाम, कर्नाटिक, इन डिटेल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट इसलिए बिकॉज कई सारे किंगडम्स है और थोड़ा सा पॉलिटिकल खिचड़ी है, वो है ना, इंस्टेबिलिटी है, बट डोंट वरी, वो मैं इन डिटेल लूंगा तो फिर आपको क्या होता है, इफ यू रीड 100 पेजेस यू टेंड टू रिमेंबर ए फ्यू पेजेस, राइट? ज्यादा पढ़ोगे तो कुछ हाथ में आएगा, इसलिए आई वुड टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, उससे पूरे 100 ईयर्स का आपको एक पिक्चर मिलेगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। अब जो सवाल हमने देखा, एक फॉर एग्जांपल यू नो द क्वेश्चन दैट वी सॉ संगम लिटरेचर का, मैं आपको दिखा देता हूं उसका कंटेंट आपके पास कैसे रहेगा। वो बहुत पुराना है बाय द वे, ठीक है, ये मत समझना कि सवाल है इसलिए डाल दिया। हाँ, अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, यहाँ पे हाँ संगम लिटरेचर, ठीक है। सो संगम लिटरेचर का बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन दिस स्लाइड, ठीक है। देन सारे संगम लिटरेचर के बुक्स जो है उनके नाम, ठीक है, ये हो गया लिटरेचर, हो गया ये क्या क्या है, ऑथर कौन है वगैरह वगैरह, सब्जेक्ट मैटर क्या, ओके। उसके बाद पॉलिटिकल हिस्ट्री, संगम एज की जो इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, शॉर्ट में है संगम सोसाइटी, कई सारे पॉइंट्स है संगम सोसाइटी के, आपको कितने चाहिए, 10-12 पॉइंट्स, वो आराम से हो जाएंगे इसमें से, ठीक है। इकोनॉमी हो गया ना, काम ही खत्म हो गया, लिखो ये मिलता है संगम लिटरेचर से, एक आध दूसरा नाम लिख दो बुक का, अंडरलाइन करो, you're good to go. So जो नोट्स बनाए हैं those are keeping in view demand of the examination, क्या चाहिए उसके बेसिस पे, not on the basis of what I know, not on the basis of what is there in the books, सब कुछ नहीं लेना है, there is no point in doing that, जो पूछा है वो करो, ठीक है। आपको
आई कैन गो ऑन शोइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ कि क्या क्या है, बट एवरीथिंग इज नॉट नीडेड. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट पोस्ट वैदिक पीरियड, जहां पे पर्शियन इन्वेजन दिख रहा है साइरस का, देन इम्पैक्ट ऑफ इंडो पर्शियन कॉन्टैक्ट्स, इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंडो पर्शियन कॉन्टैक्ट्स, राइट. देन अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, उसका इम्पैक्ट, ठीक है. रिलीजियस डेवलपमेंट्स, क्या यहाँ पे जैनिज्म बुद्धिज्म इन डिटेल, लिटरेचर के साथ, काउंसिल के साथ, सब कुछ है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. और आगे जाओगे ना थोड़ा सा, जहां पे जो हुआ है वो, हाँ, ऐसे नहीं कि एक बार बुद्धिज्म शुरू किया तो पूरा बता दें, नहीं, अलग अलग टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड की कॉन्टेक्स्ट के साथ, दैट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग, राइट. आई वुड शो यू समथिंग. ये पोस्ट मौर्य है, कई सारे डायनेस्टीज है यहाँ पे, ठीक है. एंड देन इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, वो सारे पार्ट्स आएंगे. इस तरह से कल्चर पढ़ेंगे हम उस टाइम पीरियड में जाकर के, उसके साथ बाकी चीजें पढ़ेंगे, राइट. सो सोसाइटी, फिलोसॉफिकल सिस्टम्स, राइट. यहाँ पे फिर से बुद्धिज्म, तो क्या बदलाव आया बुद्धिज्म में, राइट, इस पीरियड में, ठीक है. सी, न्यू फीचर दिख रहा है, डेइफिकेशन ऑफ गौतम बुद्ध, कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस थिंग्स. और ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी ना नोट में, यहाँ पे पढ़ाते समय, राइट, आपको ये फीलिंग है इतना क्यों चाहिए, कितना डिटेल में है. इंफॉर्मेशन हियर इज इनोसेंट only till that point of time when you attract a question on it in the examination hall. ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा आपको अगर ये फील आए एग्जाम हॉल में बैठ के, और ये पढ़ा था कि याद नहीं आ रहा, वर्स्ट, मिला था हाथ में, पढ़ा नहीं, वो नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है आपको? आई कैन गो ऑन शोइंग यू ऑल दिस थिंग्स, ये आपको वैसे ही मिलने वाला है, राइट. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो वी वुड कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स, एंशिएंट मिडिवल कल्चर, मॉडर्न, इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द डिमांड ऑफ सिलेबस. समझ में आ रहा है? ओके. एंड आपको मैं कुछ मॉडल आंसर भी दे दूंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड आंसर राइटिंग स्टफ. एक्चुअली मेरा एक दूसरा आइडिया था, बट समहाउ उसके लिए टाइम नहीं मिला उतना. आई वाज थिंकिंग ऑफ राइटिंग अ बुक, बट आई एम नॉट गेटिंग टाइम. मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से वो आई वाज डूइंग इट. जो पीपीटी में कंटेंट है ना, उसी को एक बुक की तरह लिखना, जिसको बोलते हैं पीपीटी इज लाइक नोट, माइक्रो नोट है वो. इट इज माइक्रो नोट ऑलरेडी दैट वी हैव. सो दिस इज द फॉर्मेट. सो बुक का फॉर्मेट, ठीक है. प्रॉब्लम क्या होता है कि बुक अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ता है. अगर आप कहीं और से ले रहे हो ना, दैट इज प्लेजरिज्म, कॉपीराइट वायलेशन. तो दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड डेडिकेशन, ठीक है. सो आई विल सी वेदर आई कैन कंप्लीट दिस और नॉट, बट ये कंटेंट ऑलरेडी मैं दे रहा हूं आपको पीपीटीज में. समझ में आ रहा है आपको? तो इफ यू गो एट द एंड ऑफ इट, एंड में जाओगे ना, देखो इस टॉपिक के ऊपर, स्टोन एज के ऊपर जो सवाल आए हैं यूपीएससी में, उसका मॉडल आंसर मैं दे रहा हूं नीचे. सो दिस इज द आइडिया इन माय हेड कि हाँ ऐसा एक बुक बने, ठीक है. बट आई वुड शेयर दिस विद यू. जितना भी बना है, क्या है, दो चार भी अगर आपके पास मॉडल आंसर होंगे तो आपको आइडिया आता है कि किस तरह से हम इसको डील कर सकते हैं. ये स्टोन एज का हो गया. हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड दिस टुक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है. बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसमें. देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जीएस के ऊपर, जीएस में क्या सवाल आया इस टॉपिक के ऊपर, ये सवाल आया, तो उसका आंसर 2014 में. लाइकवाइज यू टॉक अबाउट दैट, ये इतना ही हुआ है अनफॉर्चुनेटली. मॉडर्न हिस्ट्री, राइट, यू गो टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर फॉर एग्जांपल, ठीक है. कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है. यू गो टू द एंड ऑफ इट एंड यू वुड सी दो सवाल आए इस टाइम पीरियड पे. एक 2014 में आया, दूसरा 2017 में आया. दोनों सवाल उसके आंसर्स. सो दिस इज द फॉर्मेट दैट आई वाज फॉलोइंग समहाउ, बट राइज ऑफ रीजनल पावर्स, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट, ठीक है. कंक्लूजन वगैरह. सो आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू एज मेनी मॉडल आंसर्स पॉसिबल, राइट, ठीक. जैसे हो सकता है वैसे मैं आपको दे दूंगा.
और ये जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। व्हेन आई कंप्लीट टॉपिक से फॉर एग्जांपल मुगल इंडिया खत्म किया हमने, तो उसका जो क्वेश्चन है, उसका जो मॉडल आंसर है, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ओके, नाउ ये सब कुछ मैंने आपको दिखाया। हाउ वुड वी गो अबाउट इन द लेक्चर्स, कैसे जाएंगे हम यहाँ से आगे? एक बात तो क्लियर है, दैट फोकस इज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इजंट इट? सो आई वुड नॉट डू दिस कि एंशिएंट मिडिवल शुरू किया और मॉडर्न आने तक आधा साल खत्म हो गया, नहीं। व्हाट आई वुड डू इज, आपको मैं पहले आउटलाइन पढ़ाऊंगा। आउटलाइन से क्या होगा, यू वुड अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ हिस्ट्री। तो इफ आई स्टार्ट विद डिक्लेयर मुगल एम्पायर, यू एटलीस्ट हैव सम आइडिया कि मुगल एम्पायर क्या था फ्रॉम दैट आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री व्हिच विल बी द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? उसके बाद वी विल स्टार्ट विद डिक्लेयर मुगल एम्पायर, फिर मैं रुक जाऊंगा एक टॉपिक लेकर के मॉडर्न का, मैं एक आध दूसरा टॉपिक एंशिएंट का लूंगा। व्हाई? बिकॉज एंशिएंट मिडिवल को कैसे देखना है, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, ये आपको बताने के लिए। मतलब आई एम नॉट मेकिंग यू वेट फॉर नेक्स्ट 6-7 months, राइट, टू कम टू द एंशिएंट मिडिवल। एक फील बोलते हैं ना कि हाँ ये एक टॉपिक आपने देखा, ऐसे देखना है। देन आई विल कम बैक टू मॉडर्न एंड फिनिश इट टिल इंडिपेंडेंस। गेटिंग दिस? तो एक कंटिन्यूटी रहेगी, आपके पास एक दूसरा टॉपिक होगा एंशिएंट का कि हाँ उसको कैसे देखना है, क्योंकि दोनों का अप्रोच अलग है। एंशिएंट मिडिवल में कल्चर में फोकस है, बेयर मिनिमम अदर पार्ट्स, लेकिन मॉडर्न में सब कुछ पढ़ना है। तो दोनों का एक फील शुरुआती लेक्चर्स में, एंड देन विल कंटिन्यू विद मॉडर्न। आई थिंक दिस शुड बी गुड इनफ। आपको लगता है इसमें कोई बदलाव चाहिए तो आई एम ओपन टू इट, राइट? बट वी विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, डोंट वरी अबाउट इट, फ्रॉम बोथ प्रीलिम एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये मत समझना कि मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं सो प्रीलिम्स कब पढ़ाओगे, अरे वो अलग नहीं होता। मैं कल बता चुका हूं आपको, कंटेंट वही होता है। आपको मैं दोनों बताऊंगा व्हाइल आई एम डिस्कसिंग। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, इसके ऊपर 10 मार्कर बन सकता है, तो ये चलता रहेगा, कंटेंट वही होता है। ओनली थिंग इज ओरिएंटेशन ऑफ द क्वेश्चन चेंजेस, राइट? ओके, Subscribe the Unique Academy's YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos.